So very good morning to everybody. Right. Today we have what IHT, VAT, CGT and UK tax admin on our kitty. Right. तो आज वो complete करके we have to wrap it up. Right. So quickly join in. We'll start with IHT that is there. So IHT में there are two portions. Basically one there is IHT on lifetime gift and the other is IHT on death estate. Right. So IST on lifetime gifts is what individual to individual or individual to trust. Two types of gifts that can be given in the lifetime, right? Individual to individual are called as potentially exempt transfer. Individual to trust, right, for the enrichment of the individual, right, is called as a chargeable lifetime transfer. It's called as what? Chargeable lifetime transfer, CLT, right? Then potentially exempt transfers could be what? A person giving a cash gift or some gift of property, right? If there is a cash gift, so cash is not covered in CGT, so there will be not be CGT also, and there will not be IST on lifetime also. But if there is a gift of property, then chargeable gains will attract, correct? IST will also attract, but as of now it will be PET, correct? PET means potentially exempt transfer. That means during the lifetime it will not be taxable. But if the person dies within 7 years from date of gift, then that PET becomes taxable, right? Or say within 7 days after the gift is given, right? Then whenever you're taxing PETs and CLTs, right? So how does it work out? Have a look. Whenever you are taking exemptions, so PETs will be taxable, CLTs will be taxable. So the first preference, right, only applicable to PETs, right, is फर्स्ट देर इज स्पेसिफिक एग्जामेशन, देन देर इज एन एनुअल एग्जामेशन. पहला क्या है? स्पेसिफिक एग्जामेशन. देन सेकंड प्रेफरेंस क्या है? बोलो. एनुअल एग्जामेशन, राइट? तो स्पेसिफिक एग्जामेशन में यू हैव व्हाट? टेल मी. ओनली एप्लीकेबल टू पीईटीज, राइट? The specific exemptions are as follows. There are four specific exemptions, right? First is gift between spouses is fully exempt, right? Spouses का gift even in CG or a normal fully exempt. फिर normal expenditure out of income, logically that is what? Example, pocket money or expenses for meeting basic standard of living of donee, right? Then small gift exemption, if gift is less than 250 pound per annum per person or per donee, right, and it is fully exempt. If it is more than 250, fully taxable. But PET as of now during the lifetime is PET is exempt, that is potentially exempt transfer. Gift in consideration of marriage gift by parents, right? If you are a parent and you are giving gift up to 5,000, it is exempt. Grandparent 2,500. Gift between what? Each other, that is bride and groom, up to 2,500. Gift by any other person 1,000 exempt, right? That is there. Then second preference would be all this happens what? In the hands of the donor, that is giver of gift, right? That is there. Per annum basis will apply, right? फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस है एनुअल एग्जामेशन को. एनुअल एग्जामेशन ऑफ 3,000. दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ पीईटीज एज वेल एज सीएलटीज, राइट? So this unused AE of 1 year can be carried forward to next year only. Only 1 year carry forward is what? Possible. हाँ, if there is first gift in the lifetime, then last year का 3,000 का AE can be taken. This is a hidden adjustment that is there in a lot of questions. You must have seen that. फिर PET exemption का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, you can have a look. Taxation of PET during lifetime. PET are completely exempt during lifetime of the individual and no tax will be payable on the same, and hence amount of all exemption transfer value after exemption balance after exemption is equal to gross chargeable value और gross chargeable transfer. इस पे कोई टैक्सेशन नहीं है. जो पीईटी की अमाउंट है दैट ओनली बिकम्स ग्रॉस चार्जेबल वैल्यू या ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर. देन कमिंग टू सीएलटीज. सीएलटीज में अमाउंट टैक्स इज इक्वल टू बैलेंस आफ्टर एग्जेम्पशन, राइट? That is transaction or transfer value after all exemption, subject to lifetime nil rate band of how much? 325,000 per a cumulative period of 7 years. So at each gift of last 7 year utilization will be checked, right? Of only CLTs, and utilization amount is GCT or CLT. When you're looking at utilization, you don't look at the transfer value before exemption or after all exemption and all that. You look at GCA. GCA is nothing. GCA और GCT. GCA GCT का भी calculation भी आगे है. If the utilization is less than 325,000, so use current taxable amount and remaining if any will be taxable CLT amount. More than 325,000 already है, तो फिर जो भी आपका अमाउंट है विल बी फुल्ली टैक्सेबल, राइट? देन इट कम्स टू टैक्स पेबल सीईटी ओवर एंड अबाउ द
nil rate band, right? If IST is payable, if tax paid by donor, 25% tax payable, and if GCA is to be calculated, if you as a donor are paying extra tax, then that tax will be calculated or increased in the balance after exemption, correct? And GCA, if it is paid by trust, then from the amount that you have given, trust will pay tax, so no extra amount will be added to the IST part, right? वो हो गया. उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स. इफ सीएलटी इज मेड विद इन 6th April to 30th September of the tax year, due date of IST payment is 30th April after end of tax year, right? And if CLT is made from 1st October to 5th April, तो जो मंथ का CLT आप किया है from there 6 months or end of 6 months, right, will be your what? Tell me. Amount of tax will be paid. Just a second. If CLT is made, दैट इज इफ सीएलटी इज डन ऑन 1st December, तो इस मंथ के एंड पे जाने का, वहां से 6 महीना आगे जाने का, राइट? दैट इज ड्यू डेट. नाउ सी आई हैव रिटन द होल प्रोसीजर हियर. प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम गिफ्ट्स, वेरी सिंपल, राइट? व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ पीटी और सीएलटी. इफ इट इज अ पीटी, देन नो टैक्सेशन विल बी देयर. नथिंग, कुछ भी नहीं, खाली स्पेसिफिक एग्जाम्शन माइनस करने का, एनुअल एग्जाम्शन माइनस करने का, राइट? एंड बैलेंस पे जाने का. दैट बैलेंस विल ओनली बी जीसीए और जीसीटी. इफ इट इज अ सीएलटी, जो भी उसके अगेंस्ट, सीएलटी के अगेंस्ट देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन, उसके अगेंस्ट एनुअल एग्जाम्पशन होगा, राइट? वो बैलेंस आ जाएगा, राइट? इफ इट इज पीटी, बैलेंस आफ्टर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन एंड एनुअल एग्जाम्पशन इज अवेलेबल, राइट? पीटी तो डायरेक्ट हो जाएगा. बट इफ इट इज सीएलटी, तो गेट द नील रेड बैंड अमाउंट, करेक्ट? नील रेड बैंड पिछले 7 साल में जाने का, लुक एट ऑल द सीएलटीज एंड इन द लास्ट 7 years वट एवर सीएलटीज आर देयर, उसका यूटिलाइजेशन देखने का. बट द यूटिलाइजेशन शुड बी द जीसी अमाउंट ऑफ द सीएलटीज, राइट? इफ उसके बाद कुछ टैक्सेबल बचता है, तो उसके ऊपर टैक्स पेबल होगा. उसमें देखने का वेदर टैक्स इज पेड बाय डोनर और टैक्स इज पेड बाय डोनी. अगर डोनर ने टैक्स पे किया है, तो इट विल बी 25% ऑन द amount after exemption, right? Or GCA will be amount after exemption plus the tax paid, correct? But if tax is paid by trust or donee, correct, then in that case GCA GCT amount is directly balanced after exemption, and the tax paid over and above, there is no tax paid over and above. Trust तो उसमें tax include होगा. Then IST implication on death, right? इसमें अगर आपको चाहिए तो we have done a lot of questions as well. Excel में we have done questions. आई थिंक वी आर डन क्वाइट इन डिटेल. तो बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे. तो इवन इफ नहीं आने वाला है, बट इवन इफ इट कम्स फॉर सेक्शन सी, आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल डूइंग द क्वेश्चंस. ये रहे देखो. तो वेन एवर इट इज अ सीएलटी, देखो ये सीएलटी एग्जाम्पल. पीटी है, तो पीटी में स्पेसिफिक एग्जाम्शन, एनुअल एग्जाम्शन माइनस करने का, वॉट एवर इज रिमेनिंग इज टैक्सेबल अमाउंट, करेक्ट? उसको जीसीए बोल के लिख लेने का इधर, right? But if it is a CLT, then जाने का 7 years behind and look whether any GCA is there. No utilization is there. But when you go back, तो utilization will be GCA amount, correct? और ये रहा यहाँ पे GCA amount utilization में use होता है, right? If there is anything taxable, then पूछने का who is going to pay tax? It is given in the question generally. अगर कुछ नहीं बोला है तो the tax will be paid by the donor, right? That is what the basic thing is. उसके बाद चलो आईएसटी इम्प्लीकेशन ऑन डेथ. आईएसटी इम्प्लीकेशन ऑन डेथ क्या है? आईएसटी ऑन लाइफ टाइम गिफ्ट ऑन डेथ एंड आईएसटी ऑन डेथ एस्टेट. जो लाइफ टाइम गिफ्ट होगा, राइट, वो पहले टैक्स होगा, राइट? एंड देयर विल बी अ डेथ नील रेट बैंड दैट विल बी अवेलेबल न्यूली ऑन दीज व्हाट? टेल मी. लाइफ टाइम गिफ्ट्स, करेक्ट? And IST on death estate, right? That is second priority in taxation, and remaining death nil rate band will be used for
डेथ एस्टेट, बराबर है क्या? देख लो। तो फर्स्ट टैक्सेशन ऑन लाइफ टाइम गिफ्ट्स, राइट? तो कैसे होगा? हैव अ लुक, IST ऑन लाइफ टाइम गिफ्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। आ जाओ जरा। द होल process is very simple, correct? Go back 7 years from date of death, right? All the CETs and PLTs in the last 7 year period before death are taxable fully at GCA और GCT वैल्यू। तो GCA GCT वैल्यू जो है वो डेथ पे ऊपर से नीचे लेके आने की, लाइक वी हैव डन यहाँ पे एक डेथ का क्वेश्चन। किधर किया था रे? डेथ का क्वेश्चन किया था ना रे? ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हाँ ये रहा डेथ। सारे GCA GCT अमाउंट ऊपर से लेके आने के, करेक्ट? लास्ट 7 years में जो भी CLTs PTs है, नाउ दे लूज CLT PT का स्टेटस, करेक्ट? दे आर ऑल टैक्सेबल नाउ, राइट? बट उसके पहले 7 years बिफोर के CLT रखने पड़ते, बिकॉज एट एवरी गिफ्ट डेट यू हैव टू गो बैक 7 years, करेक्ट? ये टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल, बट विल बी इन यूटिलाइजेशन ऑफ डेथ नील रेड बैंड फॉर द गिफ्ट्स मेड विद इन 7 years फ्रॉम दिस CLTs, करेक्ट? आई एम टेलिंग यू 100% एक 10 मार्क का सेक्शन बी क्वेश्चन इस पे आएगा, मेरी गारंटी, बराबर है क्या? आता ही है 100%, राइट? So any PTs older than 7 years will never be taxable, but the CLTs of more than 7 years are not taxable, but to be used in death nil dead band utilization calculation. फिर सबसे पहला अर्लीस्ट गिफ्ट you start and later on move ahead. You have a death nil dead band of 325,000 with you. Utilization will be from date of gift to 7 years before. Include taxable PETs and all CLTs irrespective of whether taxed or not. ये within 7 years of death, within 7 years of death and plus older than CLTs तो older भी रहेंगे तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर टैक्स द अनयूटिलाइज अमाउंट एट 40%, बेस रेट ऑफ IST ऑन डेथ ऑफ लाइफ टाइम गिफ्ट एंड डेथ एस्टेट, बराबर है? डिडक्ट इफ अगर आपका गिफ्ट पुराना है तो डिडक्ट व्हाट, टेल मी? टेपर रिलीफ डिपेंडिंग ऑन पीरियड फ्रॉम गिफ्ट टू डेट ऑफ डेथ फॉर IST टैक्स, राइट? एंड देन IST एट 40% में से टेपर रिलीफ क्या होगा? माइनस होगा, राइट? उसके बाद अगर आपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम यू हैव पेड एनी टैक्स ऑन द CLTs, वो भी डिडक्ट हो सकता है, विच गिव्स यू IST पेएबल, एंड दिस शुड बी पेएबल 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डेथ, करेक्ट? या इफ देर इज व्हाट टैक्स लायबिलिटी डोनी और रिसीवर ऑफ डेथ एस्टेट जो होगा वो पे करेगा। व्हेन हु विल पे? बेसिकली हु गेट्स द गिफ्ट विल पे और द डोनी विल पे, राइट? देन डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल, राइट? या इन वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्चुअली, whenever Mr. A gives a gift to any of his what सन, डॉटर या कोई रिलेटिव, राइट? और कोई कंपनी के शेयर्स दिए, इन दैट केस लेट्स से ही हैड 80% शेयर्स, आउट ऑफ विच 60% ही गेव एज गिफ्ट, करेक्ट? तो एक्चुअली ही इज नॉट गिविंग 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ही इज गिविंग अवे कंट्रोलिंग स्टेक इनटू द कंपनी। तो उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट है, हैव अ लुक। वैल्यू ऑफ शेयर और एसेट बिफोर गिफ्ट 80% पे, और उसके बाद गिफ्ट देने के बाद 20% ही बचता है। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एसेट आफ्टर गिफ्ट 20%, तो जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी। बट व्हेन यू गो फॉर सीजीटी में ये 60% वैल्यू ही हो गया। वी हैव डिस्कस दिस आई थिंक। 60% जो गिफ्ट की वैल्यू है वही सीजीटी में, मार्केट वैल्यू वो टाइम पे वो सीजीटी में वैल्यू होगी, बराबर है क्या? देख लो। फिर डेथ एस्टेट का फॉर्मेट देख लो। डेथ एस्टेट फॉर्मेट, यू हैव फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, उसमें खाली नॉर्मल एंड इंटरेस्ट मॉर्गेजेस डिडक्ट होंगे, एंडाउमेंट मॉर्गेजेस इज नॉट डिडक्टेबल एज दे हेल्प यू पे द लोन। फिर बिजनेस ओन्ड बाय सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप स्टॉक, करेक्ट? एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स इंक्लूडिंग स्टॉक ISA, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर कार्स, पर्सनल चैटल्स, डेट ड्यू टू द डिसीज्ड, कैश एट बैंक डिपॉजिट्स, चैटल्स अगर कुछ होंगे तो चैटल्स भी, बराबर है क्या? पर्सनल चैटल्स, पर्सनल बिलोंगिंग होंगी, राइट? देन डेट ड्यू टू द डिसीज्ड एंड डेट ड्यू बाय द डिसीज्ड, राइट? आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कॉफिन चार्ज और मोर्निंग क्लोथ्स और टूमस्टोन, बाकी कुछ अलाउड नहीं है, राइट? देन यू हैव व्हाट, एस्टेट वैल्यू, टोटल एस्टेट वैल्यू क्या है, माइनस एग्जाम्प्ट लेगेसीज। एग्जाम्प्ट लेगेसीज इज गिफ्ट टू स्पाउस एंड गिफ्ट टू रिलेटिव, स्पेसिफिक लेगेसी टू रिलेटिव एग्जाम्प्ट। फिर आपको मिलेगा ग्रॉस चार्जेबल एस्टेट, उसमें से first preference to RNRB, second preference to DNRB will give you taxable estate and tax at 40% payable on the taxable estate, बराबर है क्या?
फिर डेथ नील रेड बैंड फर्स्ट प्रेफरेंस लाइफ टाइम गिफ्ट, अगर कुछ बच जाता है देन यूज इट अगेंस्ट डेथ एस्टेट, करेक्ट। लाइफ टाइम गिफ्ट प्लस डेथ नील रेड बैंड, इसका एक फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, राइट। देन डेथ एस्टेट में यू हैव व्हाट, टेल मी, वॉट एवर इज रिमेनिंग 40%, राइट। पूरा डेथ एस्टेट के सारे क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिस्ट कर देने का, राइट। एस्टेट में से एनी एग्जाम्प्ट लेगेसीज इफ देर आर एनी, राइट, एंड देन वॉट एवर इज रिमेनिंग उस पर 40% टैक्स पे होगा। फिर RNRB इज व्हाट, a nil red band available when transfer of what, main residence is done, correct. It is available up to 175,000, main residence is inherited by the direct descendant, यानी if Mr. A is there, son or grandson of Mr. A को क्या दिया आपने, प्रॉपर्टी दिया, ब्रदर, फादर, all that will not be allowed, correct. Value of residence is after deducting mortgages and first preference after gross chargeable estate should be to RNRB, पहले RNRB डिडक्ट होगा फिर DNRB डिडक्ट होगा, राइट। IST पेमेंट when no executor is appointed, the person receiving, generally ऐसा होता है कि पहले एग्जीक्यूटर टैक्स पे कर देता है एंड द पर्सन हु गेट्स ऑल द व्हाट estate will pay the tax to the executor, correct. शुरुआत में एग्जीक्यूटर पे करता है, देन द डोनी और whoever receives उसको मिलता है, करेक्ट। देन DNRB, DNRB RNRB की वजह से नेगेटिव डेथ एस्टेट नहीं आ सकती, बराबर है क्या। अनयूटिलाइज्ड DNRB बराबर है एंड अनयूटिलाइज्ड RNRB, अगर there is a what earlier spouse who has died before and if there is any unutilized RNRB or DNRB in their case, तो उधर का परसेंटेज लेके आना है, राइट। परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड टू whenever they died, वो टाइम पे जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ RNRB और DNRB होगा वो लेके आना है, राइट। एंड देन दैट परसेंटेज अमाउंट के हिसाब से परसेंटेज निकाल के लेके आना है एंड दैट शुड बी अप्लाइड टू व्हाट, करंट ईयर का DNRB एंड RNRB, करेक्ट. But if in the earlier time there was no RNRB, then 100% unutilized RNRB can be taken and it can be taken here as full 100%, correct. Have a look. Then planning में क्या है, make maximum use of NRB and annual exemption to reduce IST liability. Every 7 years make one payment of 325,000 ताकि आपको टेंशन ना रहे. And make PET or CLTs gift as early as possible in your lifetime, correct. Make PET or CLTs gift as early as possible so that last 7 years before में वो सारा taxable ना हो. Leave house for direct descendant, right. Because if gifted in lifetime, अगर आप लिखे मतलब in lifetime if you give a gift तो CG आ जाएगा, but if you leave it in death estate then RNRB में cover हो जाएगा. And whenever you are leaving a house, skip a generation. It is better to give it to your grandchild if your son is settled, correct. ऐसे 4 क्या है प्लानिंग के पार्ट है. Then coming to VAT, value added tax. VAT on sale of business, right. VAT on sale of business is quite, आ जाओ जरा. प्रोसेस ऑफ वैट तो ठीक है, आई थिंक प्रोसेस ऑफ वैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई देर इज अ चेन सिस्टम दैट इज देयर, राइट. अ manufacturer makes something and charges VAT on it and sells it to the wholesaler. Wholesaler takes the credit of whatever VAT he pays here, correct. And like that, that input and output VAT work out. What is input VAT, what is output VAT. VAT per charge on sale is output VAT. This will be collected from the buyer and is payable to HMRC. VAT paid on purchase, it is an input VAT, correct. This will be paid to the seller and is considered as paid to HMRC, correct है क्या. अगर input VAT is less and output VAT is higher, input VAT ज्यादा पे कर दिया तो VAT payable, output sorry input VAT is less and output VAT is more, सेल पे ज्यादा VAT लगा है, right. Input VAT is less than output VAT, correct. VAT payable to HMRC. Input VAT is greater than output VAT. अगर input VAT बहुत ज्यादा भर दिया है, right, in that case there will be VAT refund or VAT receivable, correct. Types of supply in VAT are, there are two types of supply, taxable and exempt. Taxable में there are 3 types of supply, standard rated, reduced rated and zero rated supply. Zero rated supply मतलब taxation है but the tax rate is 0%. It can anytime come into, the rate can change and come into taxation. Exempt means they are not within the purview of VAT at all. बराबर है क्या.
जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाई, करेक्ट है क्या? देख लो, एग्जाम में लैंड, पोस्टल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, इंश्योरेंस। जीरो रेटेड में क्या है? चिल्ड्रंस क्लोथिंग, नॉन लग्जरी फूड, बुक्स, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट। ये कभी भी इसका रेट बढ़ सकता है। दे आर टैक्स्ड बट व्हाट, टेल मी। टैक्स होते हैं बट प्रॉब्लम है, राइट? 0% रेट, इट कैन गो अप एनी टाइम। देन यू हैव वैट रजिस्ट्रेशन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टेस्ट। अगर आपको लगता है इन द नेक्स्ट 30 days, right, that your expected taxable supply, that is probably your revenue, will go up by 90,000. You've got a good order and you have to deliver it within the next 30 days, and you are going to receive, or you are going to do a sale of more than 90,000, right? Then you have to compulsorily register for VAT. Then in that case, you have to register within 30 days of knowing that the sale was going to go more than 90,000. You have to intimate to HMRC, right? And the registration process to be started on the day you get to know. And registration date is date of knowing that in next 30 days expected sale is more than 90,000. So on 101 2025, if you know the expected sale is more than 90,000, in the next 30 days registration effective from 101 only, and notification to HMRC within next 30 days. Notify 30 days के बाद, but registration तो आज से ही एक्टिव होगा, करेक्ट? Registration to be done in VAT1 form and to be done online, right? ठीक है। फिर हिस्टोरिक टर्नओवर टेस्ट। हिस्टोरिक टर्नओवर टेस्ट क्या बोलता है? इफ द टैक्सेबल सप्लाई इज मोर देन 90,000 इन द लास्ट 12 months, every month and you have to look back and see whether your taxable supply is more than 90,000. If it is more than 90,000, great, correct? Then you have to what, compulsorily apply for VAT registration, correct? देखो जरा, right? But if you are doing only zero rated sales, then not compulsory. Or if your expected sales from what, next 12 months is less than 88,000, not compulsory to register, right? But if all sales are now more than 90,000, if all sales are taxable at 20%, and you have to compulsory register yourself, you have to intimate HMRC within 30 days from the date you understood that your threshold limit is passed, and also registration is effective from first day of second month after the threshold has passed. So if limit reached on 31st November, बराबर है, तो आपको इंटीमेशन देना है 30 दिसंबर तक, और रजिस्ट्रेशन 1/1/25 से इफेक्टिव होगा। दिस क्वेश्चन इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन आया है इन द एग्जाम दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू, राइट? हमेशा इफ वैट का क्वेश्चन हैज टू कम, हिस्टोरिक टेस्ट या क्या है, योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टेस्ट पे से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, करेक्ट? इम्प्लीकेशन, अगर आप करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आउटपुट वैट, इवन इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर वैट बट यू रजिस्टर फॉर वैट, करेक्ट? तो आउटपुट वैट मस्ट बी चार्ज ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। ईच रजिस्टर्ड ट्रेडर is allocated a VAT registration number which must be quoted on all invoices. Each registered trader is allocated a tax period for filing return which is normally every 3 months, right? Input tax subject to some restrictions is recoverable on business purchase and expenses, right? यानी आपको इनपुट आउटपुट वैट लगाना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सारे इनवॉइसेस पे वैट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू शो दैट एन अप्रोप्रिएट वैट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, राइट? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन फॉर वैट भी कर सकते हैं, तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मे बी, आई डोंट नो, मेरे को ऐसे बहुत लग रहा है मे बी एखादा ये क्वेश्चन निकल के सेक्शन सी में ना आ जाए, थियरी क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, एटीएक्स में आता है, एटीएक्स में आया हुआ है दैट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आप वैट में करेंगे तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, बराबर है क्या? उतना खाली आप देखना, एडवांटेज वही है कि वो इनपुट वैट रिकवर कर सकता है एंड स्मॉल कंपनी को बिग बता सकता है, राइट? और अगर कुछ लफड़ा हो जाए तो इनकेस तो पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगेगी। बट हाँ, वैट करने के लिए आपको बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा, फिर बिजनेस मस्ट चार्ज वैट, दिस मेक्स देयर गुड्स कंपैरेटिवली व्हाट, मोर एक्सपेंसिव देन एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस फॉर कस्टमर हु कैनॉट रिकवर द वैट, बराबर है क्या, राइट? तो किसके लिए बेनिफिशियल है, ये एक एमसीक्यू आता है, किसके लिए बेनिफिशियल है? जीरो रेटेड सप्लाई जो करता है, जो इनपुट वैट पे करता है वो रिकवर कर सकता है, एंड सप्लाईज टू वैट रजिस्टर्ड कस्टमर कर रहा है अगर वो, तो वो कर सकता है, दो लोगों के लिए। बट नॉट बेनिफिशियल फॉर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट गुड्स जो यूज करता है या आगे सेल नहीं करने वाला है, उसके लिए इट इज नॉट रियली वेरी
रिक्वायर्ड। फिर रिकवरी ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट, अगर गुड्स होंगे तो परचेस विद इन 4 years बिफोर रजिस्ट्रेशन प्लस इन पोजेशन ऑफ स्टॉक ऑन डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको उसका इनपुट वैट मिल जाएगा। और सर्विसेज अवेल्ड इन द लास्ट 6 months बिफोर रजिस्ट्रेशन, राइट, वो वाला पार्ट है। इनपुट आउटपुट लॉजिक आ जाओ जरा। हाँ एक हाँ, वैट इंक्लूसिव वैट एक्सक्लूसिव अमाउंट का भी कंसेप्ट है। इफ आई से $100 वैट इंक्लूसिव, तो हाउ मच इज द वैट, तो आप कैसे निकालोगे? 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, वैट की अमाउंट वैसे निकलेगी, करेक्ट है। 100 डिवाइड बाय 120, इधर देखो मैंने दिया वैट इंक्लूसिव, डज हैव एन इनवॉइस ऑफ 1500, इफ इट इज वैट इंक्लूसिव तो वैट निकालना है, कैलकुलेट वैट, तो 1500 बाय 120 इंटू 20 आपको वैट मिलेगा। अगर वैट एक्सक्लूसिव है तो 1500 पे यू हैव टू कैलकुलेट देन अगेन 20%, राइट। क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत सारे, इनपुट आउटपुट लॉजिक आ जाओ। मिस्टर ए हैज डन अ सेल ऑफ व्हाट 150,000 पाउंड इन द क्वार्टर जनवरी टू मार्च, करेक्ट, परचेस इज 200,000, तो हमको क्या करना है, इनपुट वैट निकालना है। पहले आउटपुट वैट है जो आप वी हैव टेकन फ्रॉम पीपल एंड वी हैव टू पे टू एचएमआरसी, एंड द इनपुट वैट इज वी हैव पेड टू एचएमआरसी। In that case, we have paid more to HMRC and we have received only 30,000. So we will have VAT receivable या VAT refund that is there, right? चलो, और इनपुट आउटपुट वैट में ना ही खाली इन्वेंट्री बट मशीनरी, राइट, मशीनरी हो गया, सेल एंड परचेस ऑफ मशीनरी दैट इज कैपिटल गुड्स, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेंट्री या कैपिटल गुड्स एंड रेवेन्यू गुड्स, इनपुट एंड आउटपुट वैट ऑन बोथ विल बी चार्ज, करेक्ट। इवन अ सेल ऑफ बिजनेस is also considered what a commodity and GST का नहीं, but VAT will be charged on the same, correct। इंडिया में पहले VAT ही था, करेक्ट, ऐसा है। VAT on sale of business, for sale of business to be exempt from VAT chargeability, all four conditions given below are to be satisfied. Business is transferred as what? Going concern. No significant break in trading. Same type of business, right? देखो, अगर आप सेल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं एंड ऑल दीज 4 कंडीशन आर फुलफिल्ड, नो वैट, बट अगर एक भी कंडीशन नॉट फुलफिल्ड देन वैट विल बी चार्ज्ड, करेक्ट। दैट इज इफ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, दैट मीन्स the same business is going to be carried out ahead, right? No significant break in trading, 1 year, 2 year, right? Just a second. So no significant break in business and same type of business is carried out by the new owner, correct? And buyer has to be liable for VAT after purchase of business. Any old activity and new activity both have to be liable to VAT. Also, the old owner can transfer his old registration to the new owner, or old owner can what, give up his old registration, new owner can take his new registration, right? But if old owner takes up the what registration, or new owner takes up the registration of the old owner, in that case all the assets and liabilities, all the liabilities of the old owner will be transferred to the new owner। बराबर है क्या? देख लो। उसके बाद वैट चार्जेबिलिटी, राइट, rate of supply 20%, value of supply or input or output, allowability of input or out, and time of supply। तो तीसरा टाइम ऑफ सप्लाई की बात होती है। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बेसिक टैक्स पॉइंट। बेसिक टैक्स पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, date of provision of service or date of service provided, and for goods it is what, date when order is delivered to customer or date when service is provided। then एक्चुअल टैक्स पॉइंट और बीटीपी में थोड़ा सा फर्क है। पहले आप क्या करना, वेन एवर यू हैव टू डू द एक्चुअल टैक्स पॉइंट, एक्चुअल टैक्स पॉइंट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हेन वैट विल बी चार्ज, अकॉर्डिंग टू दैट योर क्वार्टरली वैट विल बी पेएबल। तो एक्चुअल टैक्स पॉइंट है डेट व्हेन वैट इज एक्चुअली चार्ज, तो डिटरमाइन बीटीपी ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। सबसे पहले बीटीपी करने का, राइट, देन सी वेदर एनी इनवॉइस और पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द बीटीपी। इफ एनी इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड बिफोर द बीटीपी, then in that case what will happen, VAT will be charged on that date only when the invoice or payment has been received, right। और अगर दोनों पहले, पेमेंट और इनवॉइस दोनों बिफोर गिविंग द गुड्स है, इन दैट केस बोथ बिफोर बीटीपी, देन चूज द अर्लियर डेट, करेक्ट। वेदर एनी इनवॉइस, अब अगर इफ देर इज नो इनवॉइस और पेमेंट बिफोर your BTP, then look whether any invoice is prepared within 14 days from BTP. If yes, then invoice date is your actual tax point. If no, that is farther than 14 days invoice है, तो BTP will become your
ATP. Now what happens if part payment is received first and remaining payment after what? After 1 month or something, but invoice is prepared within 14 days. So half इधर tax होगा और half invoice के day पे tax होगा. There are a lot of questions, correct? Lot of questions that I have done on this. You can have a look, correct? फिर VAT on discount, trade discount होगा तो it does not have a what? Place in what? Tell me. The VAT system at all, because trade discount may you reduce the rate only, so it will not have a part, or it will not be a part of the invoice, right? Or even if it is part of the invoice, it will be deducted, correct? But when there is cash discount which says that boss, if you pay, general credit period is 60 days, but if you pay within 10 or 20 days, right, you will be given a discount. So when that person comes in 10 days and pays the amount to you, right, there are two options, right? You can either write on the face of the invoice that boss 500 का invoice था, one or $50 or 500 pounds का invoice था, 50 pound invoice this discount given, and 450 pound का, because you would have charged VAT on 500, so you have to reverse the VAT on the discount, or you can pass a credit note to reverse the sale and the VAT that is there. Both option are available to you. फिर डी रजिस्ट्रेशन फॉर वैट, अगर आपको लगता है if the business is closed, then compulsory deregistration has to be made. You have to intimate HMRC within 30 days after the business closing date, right? And the date of effective registration, deregistration, is date of cessation of business. But if you voluntarily, you are continuing business, but threshold limit pass नहीं हो रही, that is if your expected taxable supply of next 12 months is less than 88,000 at any point, then HMRC to be intimated within how many? 30 days from the day you realize that the expected taxable supply is less than 88,000. जिस दिन आपको पता चला, then date of deregistration would be when deregistration request, यानी the day you make the request or agreed later date that is specified by the VAT supplier. Deregistration तो बहुत easy है, correct? Then effect of deregistration, right? Deregistration में क्या होता है? If you have what? See, when you deregister yourself, you will have some inventory, you will have some capital asset, right, which you have not yet sold. उस पर का input VAT अगर if it is less than 1,000 pounds, then no need to what? Do anything. Those 1,000 pounds you don't have to pay, correct? But you have what? Tell me. देखो, whatever goods you have, they are considered to be sold because उसमें input VAT पे कर दिया, और वो input VAT ही वैसे का वैसा रिवर्स हो जाएगा आउटपुट VAT. If the input on those goods that are in inventory is less than 900, you don't need to pay anything to the HMRC. But if they are more than 1,000 pounds, then you will have to pay the whole amount to what? Tell me. The HMRC. बराबर है क्या? देखो जरा. Effect of deregistration: all inventory non-current asset not sold on deregistration plus input VAT claimed, right, account as output VAT. If VAT is less than 1,000, it will be waived off. But if it is more than 1,000, you have to pay the amount to output VAT as output VAT to HMRC. बराबर है क्या? Input output VAT, right है? चलो. To avoid this and have tax planning in this regard, HMRC given list of input. हाँ, क्या क्या? What all input VAT, right, and output VAT that can be claimed. आ जाओ. VAT chargeability, input VAT and output VAT. Input VAT available on all purchases, correct? Revenue or capital, example inventory and NCA, right? Output VAT, all sales and revenue, inventory and non-current asset, right? NCA have to be, but if those NCA, that is non-current assets, are not business asset, then you will not get the input or output VAT on the same, right? Then you have business entertainment, right? Business entertainment pay, if overseas customer or employee staff you are doing any expenses, on that input VAT is paid, then that input VAT is allowed to be taken. But if there it is for other person, right, supplier, customer, etc., then input VAT cannot be claimed, right? Right? Then self employment, बट वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक्सपेंस में ओवरसीज कस्टमर का एंटरटेनमेंट नॉट अलाउड, एम्प्लॉय स्टाफ अलाउड, अदर पर्सन नॉट अलाउड. याद रखना, करेक्ट. वन क्वेश्चन कैन कम अप विच आस्क्स फॉर बोथ. मोटर कार में, परचेस ऑफ मोटर कार में, इफ इट इज 100% बिजनेस यूज मोटर कार, देन 100% इनपुट अवेलेबल. 99% ऑल्सो बिजनेस यूज एंड 1% पर्सनल यूज बाय मोटर कार बाय ओनर, देन 0%. ओनर हो गया या आपका एम्प्लॉय हो गया या पार्टनर हो गया, all three, even if the car is used for less than 100%, right, then purchase of motor car पे 0% input available. But expenses on motor car, repairs of motor car, whatever type of motor car repairs पे 100% available. The other business use हो या
थोड़ा कम बिजनेस यूज है, फुल बिजनेस यूज है। इंश्योरेंस एंड रोड फंड लाइसेंस इस पे वैट आता ही नहीं है, राइट, तो टेंशन ही नहीं है। बट फ्यूल एक्सपेंसेस इज वन पेन इन द हेड, बराबर है ना, देख लो, वेरी डेंजरस। अगर 100% बिजनेस यूज प्लस फ्यूल एक्सपेंसेस इनकट, राइट, देन फुल इनपुट वैट अवेलेबल, करेक्ट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, पार्टनर कोई भी बिजनेस यूज यानी प्राइवेट यूज करे तो चलेगा, राइट, पूरा 100% है, करेक्ट, तो टेंशन ही नहीं, राइट। बट इफ इट इज लेस देन 100% बिजनेस यूज एंड द परसेंटेज ऑफ बिजनेस यूज इज नॉट क्लियर, राइट, बट अगर लेस देन 100%, पहले ये करना चाहिए, बिजनेस यूज क्लियर है तो फिर ओनली 70%, जितना बिजनेस यूज है उतना ही अलाउ। बट अगर बिजनेस यूज परसेंटेज इज नॉट क्लियर, इन दैट केस देखने का क्लेम फुल इनपुट वैट, राइट, ऑन फ्यूल एंड रनिंग कॉस्ट, यानी फ्यूल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉय टू बिजनेस फुल्ली और पार्टली, तो उतना आउटपुट वैट बता देने का। बट इफ नो रिइंबर्समेंट, राइट, यानी देखो क्या होगा, फ्यूल एक्सपेंस है, राइट, इट इज 50% बिजनेस यूज, या बिजनेस यूज का परसेंटेज ही मालूम नहीं है और कोई भी क्या नहीं हुआ, फ्यूल एक्सपेंसेस रीइंबर्स नहीं हुआ बाय एम्प्लॉय टू बिजनेस, इन दैट केस वैट स्केल चार्ज विल बी देयर, वॉट एवर वैट स्केल चार्ज होगा इंटू 1/6 विल बी द आउटपुट वैट दैट यू विल व्हाट, टेल मी, रजिस्टर। देख लो, एक बार आपने ये देखना मांगता, विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट। whenever business properly specifies that percentage of business use within the expense, then only the proportion, यानी वैट ऑन क्लीनिंग एक्सपेंसेस 5000 पाउंड है, बोला है 30% पर्सनल यूज है तो खाली 70% वैट मिलेगा, ये रहा। और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वापस उसको पढ़ सकते हो। कुछ कुछ बार इनपुट वैट देते भी नहीं, इन दैट केस आपको इनपुट और आउटपुट वैट स्केल चार्ज पे लेके जीरो इम्पैक्ट देना है। चलो, ये 3 मोटर कार का क्वेश्चन है, आप ये 3 मोटर कार का क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। लीस्ट कार इनपुट वैट अवेलेबल 50% ऑफ द लीज रेंटल अवेलेबल, ठीक है, लीज कार पे तो 50% है। वैट इम्प्लीकेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड नॉन करंट एसेट गिफ्टेड, गुड्स एंड नॉन करंट एसेट अगर गिफ्ट हो गए, अगर एज सैंपल गुड्स है तो नो वैट, बट इफ गिफ्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन करंट एसेट लेस देन 50 पाउंड पर पर्सन पर ईयर होगा तो नो वैट, बट 50 पाउंड पर पर्सन होगा तो आपको आउटपुट वैट क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। यानी मैं अगर किसी को गिफ्ट देता हूँ तो सेल तो रजिस्टर नहीं होगा, गिफ्ट होगा, राइट, और वो 50 पाउंड पर पर्सन से ज्यादा है तो देन आउटपुट वैट उस पर चार्ज करके आई हैव टू पे टू HMRC। सर्विस, गिफ्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, राइट। वैट इम्प्लीकेशन ऑफ गुड्स टेकन फॉर ओन यूज बाय ओनर्स, करेक्ट, तो परचेस फॉर बिजनेस पर्पस इनपुट वैट क्लेम, राइट, फॉर ओन यूज आपने किया, परचेस फॉर बिजनेस पर्पस इनपुट वैट क्लेम कर दिया तो आउटपुट वैट चार्ज करो एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज मार्केट वैल्यू, या आपने परचेस किया ही नहीं बिजनेस पर्पस के लिए तो उसका वैट इम्प्लीकेशन विल बी नथिंग। देन रिलीफ ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। इफ 6 months have passed from date of payment being due and plus debt is written off from books of accounts, correct, 6 महीना हो गया, राइट, फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो आई मेड अ सेल टुडे एंड 2 months क्रेडिट वाज देयर, तो 2 month के बाद 6 months हुए यानी 8 months होने मांगते, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, या मैं बोलू फ्रॉम डेट ऑफ व्हाट, पेमेंट ड्यू टू व्हाट, टेल मी, 6 months, वहां से 6 months अगर हुए, इन दैट केस 6 months have passed from date of payment being due, the debt is written off from books of accounts, you can claim the amount of VAT on irrecoverable debt as input VAT and reverse it accordingly, बराबर है क्या। वैट एक्सप्लेनेशन, हाँ जो जरा ये तो ठीक है, वैट रिटर्न एंड पेमेंट डेट्स, वैट रिटर्न एंड पेमेंट डेट क्या है, इज 1 month and 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, आपका क्वार्टर जहां का ही एंड हो रहा है, इफ योर क्वार्टर इज एंडिंग ऑन 30th June देन 7/08/2023 विल बी योर डेट एंड सो ऑन, करेक्ट। सब्सटैंशियल ट्रेडर और वैट रिफंड, एक बार रीड मार लो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार रीड मारना जरूरी, ऐसा मैंने बोलूंगा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप करोगे नहीं, करेक्ट। वैट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अप टू 6 years, राइट, एंड ऑल वैट इनवॉइसेस, कॉपीज, आउटपुट वैट, इनपुट वैट, right, purchase invoices are to be kept. Then VAT invoice, there are 2 types of invoice to be issued, generally VAT invoice 30 days of supply में issue हो जाना चाहिए, right, और exempt supply, zero rated supply और non VAT registered को छोड़ के बाकी सबको it is what, compulsory to give a VAT invoice. VAT invoice should be electronically prepared. Types of VAT invoice, if supply is less than 250 तो simplified VAT invoice, if supply और sale amount is more than 250 then a detailed VAT invoice. Simplified में क्या है, supplier name, date of supply, description of the goods,
कंसिडरेशन फॉर द सप्लायर रेट ऑफ वैट, राइट। बट जब डिटेल आता है तो बहुत सारी चीजें, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का नाम, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, खुद का यानी कस्टमर का सब कुछ, वैट और ये सब वैट नंबर और सब कुछ, प्लस सारी डिटेल्स, प्लस डिस्काउंट इफ एनी, प्लस ब्रेकेज ऑफ हाउ मच वैट, बराबर है क्या। हर एक चीज का फिर डेट लिखनी पड़ेगी, आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स पॉइंट का डेट क्या है, राइट। एवरीथिंग हैज टू बी रिटर्न, करेक्ट। वो हो गया डिटेल्ड वैट इनवॉइस। फिर एरर्स ऑन वैट रिटर्न आ जाओ जरा। अगर एरर ऑन वैट रिटर्न है, इज आइडेंटिफाइड बाय ट्रेडर हिमसेल्फ एंड इट इज नॉट अबाउट डी मिनिमस लिमिट, तो उसको स्टैंडर्ड पेनल्टी लगेगी। बट इफ इट इज अबाउट डी मिनिमस लिमिट देन स्टैंडर्ड पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट पेमेंट डेट, राइट। और एरर ऑन वैट रिटर्न इज आइडेंटिफाइड बाय एचएमआरसी, तो स्टैंडर्ड पेनल्टी भी लगेगी, डिफॉल्ट इंटरेस्ट भी लगेगी। डी मिनिमस लिमिट यानी 10,000 और 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, जीरो रेटेड 20%, 5%। टैक्सेबल टर्नओवर बोलने के बाद जीरो रेटेड 20%, 5% तीनों इंक्लूडेड, सब्जेक्ट टू अपर लिमिट ऑफ व्हाट, 50,000, करेक्ट। यानी 50,000 से ऊपर अगर आपका डिफॉल्ट है तो लफड़ा ही लफड़ा है। ग्रेटर ऑफ द टू इज डी मिनिमस लिमिट। आप डी मिनिमस लिमिट का एक क्वेश्चन देख सकते हैं। डिफॉल्ट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 7.75%। इस टाइम का रेट फॉर डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द डेट इट वॉज ड्यू अप टू द डेट यू हैव पेड द टैक्स। फिर पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेनल्टी पॉइंट सिस्टम हो गया अभी। 1 penalty point for every late filing of return. आफ्टर 3 penalty points फ्रॉम 4th penalty point 200 pound का पेनल्टी लगेगा। सर इंटरेस्ट लगेगा क्या लेट पेमेंट का? अरे इंटरेस्ट तो लगेगा ही अगर आपने लेट पे किया तो। क्या फाइलिंग लेट का इंटरेस्ट नहीं है, बट टैक्स पेमेंट लेट का इंटरेस्ट है। इफ यू वांट टू रीसेट द पेनल्टी पॉइंट देन द नेक्स्ट 12 months रिटर्न यू हैव टू पे ऑन टाइम, करेक्ट। हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे स्टडी अप से भी, ये रहा, राइट। इफ वैट पेड लेट बाय 0 to 15 days, नो फिक्स पेनल्टी। इंटरेस्ट तो लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी अगर आप वैट को लेट पे करेंगे तो, करेक्ट। 0 to 15 days नो पेनल्टी, बट इंटरेस्ट तो लगेगा। 16 to 30 days, करेक्ट, फिक्स पेनल्टी 2% प्लस 7.75% इंटरेस्ट भी लगेगा, करेक्ट। ये फिक्स पेनल्टी 2% और 7.75 ऑन नंबर ऑफ डेज यू पे लेट। मोर देन 30 days फिक्स पेनल्टी 4%, डेली पेनल्टी ऑफ 4% पर एनम ऑन पीरियड आफ्टर 30 days, करेक्ट। एंड डिफॉल्ट इंटरेस्ट विल बी पेड 7.75%। आप एक क्वेश्चन इसका देख सकते हो, एज वेल एज गुड एज व्हाट, बढ़िया क्वेश्चन है स्टडी हब। और इसमें से ये वैट कैश अकाउंटिंग स्कीम, वैट कैश अकाउंटिंग स्कीम, अगर सेक्शन भी क्वेश्चन आना है, कोई एक स्कीम पे भी क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा हुआ है। वैट कैश अकाउंटिंग स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, राइट। ट्रेडर must be up to date with VAT return in last 12 months, right, and have not committed any VAT offense in the last 12 months. और उसका taxable supply must be less than what, tell me, 1.35 million pounds, करेक्ट। तो टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, 20%, 5%, जीरो रेटेड। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स को इधर इंक्लूड नहीं करते, बट इफ ही कैन स्टे इन द स्कीम अप टू हिज टर्नओवर गोइंग टू 1.6 million, बराबर है क्या। वैट कैश अकाउंटिंग scheme, VAT will be recorded output and input VAT on receipt or payment basis but not on accrual basis or invoices. कैश अकाउंटिंग में पैसा आया तो ही VAT आउटपुट और पैसा दिया तो ही VAT इनपुट, करेक्ट। नो प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट एंड if payment is not received output VAT will never be paid. Not included in the scheme if payment is made more than 6 months after issue of invoice. बहुत लंबा पेमेंट क्रेडिट पीरियड है ये, when invoice is issued prior to service provided, right. ये आप एक बार देख सकते हो, इधर एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हुए बुक में भी आपके है। एनुअल अकाउंटिंग स्कीम, एनुअल अकाउंटिंग स्कीम क्या बोलती है, आपको एक ही क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा पूरे साल का, राइट। तो नीचे इधर एनुअल अकाउंटिंग स्कीम, हाँ, एनुअल अकाउंटिंग स्कीम ओनली वन रिटर्न फॉर द फुल ईयर, राइट, ऑन द स्टैंडर्ड रेटेड प्लस रिड्यूस प्लस जीरो रेटेड, क्या है, सारे आ जाएंगे। टैक्सेबल टर्नओवर हैज टू बी लेस देन 1.35 million अप टू डेट 12 month वैट रिटर्न एंड लीव द स्कीम व्हेन स्टैंडर्ड रेटेड रिड्यूस प्लस जीरो रेटेड। लास्ट 12 month में क्या है, 1.6 million तक यू कैन स्टे इन द स्कीम। उसके ऊपर जाने के बाद यू हैव टू स्विच टू व्हाट, क्वार्टरली रिटर्न्स, राइट। इधर एंड कब वैट पेमेंट्स, आपको इधर रिटर्न फाइलिंग 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग एनुअल पीरियड दैट इज देयर, बट आपको पेमेंट 4th month से 12th month तक करना पड़ेगा। 4th month एंड टू 12th month एंड, यानी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, बराबर ना। 7th, 7, 8, 9, 10, ये 7 महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एनीथिंग लेफ्ट देन बिफोर द रिटर्न डेट यू हैव टू पे, ऐसा एक क्वेश्चन भी है। और क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का 10% आपको, ये 7 नहीं 9 आएंगे ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने तक होता है ना, 4th to 12th month,
बराबर है ना। तो वैसे 9 महीने लास्ट ईयर का जो भी लाइबिलिटी होगा ना इंटू 10% विल बी पेड इन दीज 9 व्हाट डेट्स, एंड इफ एनीथिंग रिमेनिंग देन बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न यू हैव टू पे द वैट। बराबर है क्या? फ्लैट रेट स्कीम ऑपरेशन, करेक्ट। टोटल सेल्स इंटू, तो व्हाट इज इट, टोटल सेल्स इंटू फ्लैट परसेंटेज पे वैट होगा। आपको कोई 20% पे नहीं होगा, रिड्यूस रेट होगा 10%, 12%। ये फ्लैट रेट क्या होगा, दिस विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर इन द एग्जाम। बट आप जो टोटल सेल्स लेते हो ना, इसमें कैसा ना, एलिजिबिलिटी के लिए अलग सेल्स इंक्लूड होगा, और टोटल सेल जो सेल पे वैट कैलकुलेट होकर वैट पे करना है, दैट इज अ डिफरेंट सेल। एंड एलिजिबिलिटी के लिए डिफरेंट सेल, एलिजिबिलिटी के लिए इट इज सेइंग टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ शुड बी लेस देन 150,000। टैक्सेबल टर्नओवर में स्टैंडर्ड रेट इज विदाउट वैट, जीरो रेटेड विदाउट वैट, रिड्यूस रेटेड विदाउट वैट, सारे विदाउट वैट लेना है और चेक करना है पहले एलिजिबल हो कि नहीं, करेक्ट। इसमें कोई इनपुट इनपुट कुछ नहीं मिलता, खाली एक फ्लैट रेट पे आपको वैट पे कर देना। वैट रिटर्न 12 महीने में और कोई नो ऑफेंस इन लास्ट 12 मंथ्स। बट जब आप वैट कैलकुलेट करते हो पेएबल, इन दैट केस आपको टोटल सेल्स में स्टैंडर्ड रेटेड सेल लेना है, जीरो रेटेड सेल लेना है, रिड्यूस रेटेड सेल लेना है, एग्जाम सेल भी लेना है, और उस पर का जो वैट लगा है वो सारा ऐड करना है। उस पर एक फ्लैट रेट कैलकुलेट होगा और वो होगा आपका वैट पेएबल। ये नीचे एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए अलग क्राइटेरिया, अलग सेल्स लेने पड़ेंगे, और क्या है बोलो, इसके लिए अलग सेल्स लेने पड़ेंगे। और ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ वैट, अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, राइट, तो आपको इनपुट वैट मिलेगा उतना ही, आउटपुट वैट बोल के आपको क्लेम कर लेना है और जीरो इफेक्ट आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर है तो वो जीरो रेटेड सेल्स है, तो आपको नो वैट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, राइट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूके वैट है, यानी आपको उस पर कोई वैट लगाना ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है और काम खत्म कर देना है। विद दैट आई थिंक वैट इज ऑल्सो डन। कोई डाउट किसी को, टेंशन, क्वेरी, बोलो। स्पीड ओके या बहुत ज्यादा है, बोलो। प्रॉब्ली लास्ट डेज में हो आप, राइट, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर लगता है आईएसटी को रिवाइज करने के लिए, करेक्ट, लगना चाहिए आइडियली। बराबर है क्या? चलो क्या इसमें चार्जेबल गेंस, या ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, ब्रेक दे दूँ? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आ जाओ ब्रेक लेके, 10:45 तक आ जाओ।
चलो quickly come back. Chargeable gains tax admin next 40-45 minutes. Let's quickly complete that. Can we start? Tell me. चलो जल्दी चलो. Right? Chargeability of what? CGT का chargeability. Right? For CGT, there are three important things: chargeable person, chargeable asset, chargeable disposal. Chargeable person, a person who's a UK resident, right? His worldwide assets owned by the person are chargeable asset. If he's a UK resident and he has asset anywhere in the world and he sells that asset, chargeable gains will arise. Then that asset has to be a chargeable asset. Chargeable asset means what? All assets owned are chargeable asset except the following assets which are exempted. नीचे exempted की list है. यहाँ पे exempt assets की list है. Other than exempt assets list, all assets that are owned by an individual and are sold, CGT will apply on that, right? And when there is a disposal, when the disposal is a chargeable disposal, so chargeable person, chargeable asset, chargeable disposal. So disposal would be sale of asset, exchange of asset, loss or total destruction, insurance proceeds received, correct, against the chargeable asset, and gift on death of individual and gift to trust. Has to be a chargeable disposal but exempt because of what? They are taxable in what? IST and not in CGT. Correct. Then going ahead, you have what? What are chargeable assets and what are exempt assets? Exempt asset में सबसे important motor vehicle, main residence, they are most important. Cash, ठीक है, certain type of chattels will come going ahead. Investment held within an ISA, correct. Qualifying corporate bonds, gilt edge securities, NSI certificates, correct. NSI certificates पे CGT is exempt, हाँ याद रखना. यार gilt edge securities sold, CGT exempt. Qualifying corporate bonds sold, CGT exempt. बट QCBs पे अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो टैक्सेबल, बट QCB sold, no CGT, correct. Have a look. Foreign currency or for private use, correct. If there is any for private use, right. Then receivable हो गया, prize and betting winnings हो गया, decoration for valor हो गया, correct. All these are what? Tell me. Assets that are exempted assets. फिर the calculation का format is very simple. Gross sale proceeds minus allowable selling costs gives you net disposal proceeds minus cost of acquisition or purchase consideration, and the incidental cost and enhancement cost will be added there, and you will have the difference between the net sale proceeds and the cost of acquisition. Total cost of acquisition is your CG or CL, capital gain or capital chargeable gain or chargeable losses, correct. This will happen for every asset. Then you bring the net amount after adding all the asset costs, some CG, some CL, add all of them net. If it is CG, right, then you bring it here in the computation ahead. But if it is a capital loss, put it up in the loss memo, correct. Then CG अगर है net CG, right, उसमें से trading loss of current year and carry back, right, current year and carry back वाला loss, trading loss, if used against total income, anything remaining you can use against CG. Then AE up to 3000 available. Then CG after what? Your trading loss and AEA will become. Then brought forward capital losses gives you net taxable CG. Then CG calculation to be done separately from the computation of income tax. But the computation done in computation of income tax of individual is useful for CG calculation because you will take total taxable income from there. उसके ऊपर ये CG calculate होगा या add होगा, correct. Then CG calculation is okay. Various chargeable disposals, ठीक है, ये भी okay है. Just a second. So if there is any gift of asset from one spouse to another spouse, correct, then it will not be a taxable, it will be fully exempt, and cost of acquisition of the first spouse will be available to second. But if you do a normal gift, right, it will be done as what? Tell me. Proper market value as on date of gift will be the sale proceeds, correct. उसमें से cost of acquisition minus होगा, right, that will be there. And gift of asset on death, अगर death पे कोई asset, तो market value as on death will be the amount will be received or will be the cost of acquisition of that gift, right. फिर AE and brought forward losses, first preference AEA का first preference, no carry forward of AE allowed, correct. And AEA cannot lead to losses, right. तो net CG less than 3000 है,
तो AEA will be restricted to less than 3000. If net CG is more than 3000, then full AEA is used in preference. फिर brought forward losses also restricted to what? CG after AEA cannot lead to negative taxable CG, right? Example of AEA and losses. अभी ये मेरा हिसाब से I have done this. फिर rate of tax main residence है तो पूरा exempt. But if out of the main residence after private residence relief, if anything is left, then it will be taxed at other residential property rate, that is 18% and 24%, correct? And any other assets, correct, it will be 10% and 20%. So 10 and 20 kaisa, if the CG taxability is falling within the basic rate band, right, then if it is other residential property or main residence में PRR करने के बाद any taxation, it will be taxed at 18% if it is falling the basic rate band. So for checking whether the CG falls within the basic rate band, you have to take the टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम देयर, फिर उसके ऊपर सीजी लगाने का, वॉट एवर इनकम फॉल्स विद इन द बेसिक रेट बैंड उस पर 18%, वॉट एवर इनकम फॉल्स आफ्टर द बेसिक रेट बैंड इन द हायर रेट बैंड और एडिशनल रेट बैंड will be taxed at 24%. But if it is any other asset over and above the total taxable income, if the CG is taxed and if the CG falls within the basic rate band, then 10%. If the CG falls what over and above the basic rate band into the higher and additional rate band, then it will be taxed at 20%. बराबर है क्या? देखो, चलो चलो चलो, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ CGT when residential property and other assets are having CG, बराबर है क्या? यूज अ कॉलमनर अप्रोच, दो अलग अलग कॉलमनर अप्रोच करने का. वन इज व्हाट? अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट, एंड अदर एसेट्स, यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अदर एसेट्स, करेक्ट. इन दैट केस सबसे पहले AEA एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस शुड बी यूज्ड अगेंस्ट व्हाट? टेल मी. Your residential property, and then against any other assets if any remaining, correct? Have a look. And while taxation, you will tax other assets first and then tax residential property, right? That is how it will. सर हाँ अदर रेसिडेंशियल में क्या आ सकता है? हाँ, अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है? अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विच आई हैव रेंटेड. एक तो मेन रेसिडेंस है मेरा, करेक्ट, उसमें हाँ. PRR रिलीफ मिला अगर फुल आई हैव ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी फॉर फुल ओनरशिप पीरियड, तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. सेकंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी मैंने जो रेंट पे दी है वो, करेक्ट. ओके सर. ओके. और अगर वहां पे पूरा PRR नहीं मिला तो उसका जो पार्ट टैक्सेबल होगा वो भी अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट 18 और 24% पे टैक्स होगा. हाँ. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको 60 डेज में क्या करना है? एक रिटर्न फाइल करना है, उस दिन तक का सारा टैक्स पे कर देना है, करेक्ट. सारे इनकम्स का एक रिटर्न फाइल करना है, राइट. वैसे पेमेंट ऑफ CGT ड्यू कब है? 31 जनवरी फॉलोइंग द टैक्स ईयर, यानी 24-25 के लिए 31 जनवरी 2026, करेक्ट. हाँ, बट ये वाला जो है, आप आगे ATX में आओगे तो इसका कैलकुलेशन भी है कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब सेल करते हो तो पार्ट सेल करते हो तो उस तक का जो CGT है और टैक्सेशन है वो पे करना है. पार्ट डिस्पोजल एग्जाम्पल, अच्छा, पार्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट. इसमें क्या है? पार्ट डिस्पोजल, आई हैव 100 एकर्स ऑफ लैंड, आई सेल 20 एकर्स, तो कितना होना चाहिए वैल्यू ऑफ माई 20 एकर्स? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आउट ऑफ द 100 एकर्स. तो टोटल कॉस्ट ऑफ फुल एसेट 100 एकर्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ द पार्ट एकर दैट यू आर सेल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ द पार्ट एकर्स यू सोल्ड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एकर्स. वो जो उस दिन के मार्केट वैल्यू पे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड करना है, करेक्ट है क्या? राइट. फिर चैटल, चैटल में क्या है? वेस्टिंग चैटल, नॉन वेस्टिंग चैटल. वेस्टिंग चैटल इज जनरली लाइव जिसकी लेस देन 50 ईयर्स है. अदर एसेट्स उसमें जो ग्रेहाउंड, रेस हॉर्स, बोट वगैरह वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है. और प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके ऊपर का खाली CG आएगा, कैपिटल लॉस नहीं आता. बिल्कुल कैपिटल लॉस और योर लॉस, राइट, विल बी देयर इन योर बिजनेस इनकम. वहां पे सेल क्या है देखा था हमने, पूल सिस्टम में वो होता है, राइट. बैलेंसिंग अलाउंस रहेगा तो वो आ जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज होगा, राइट, तो वो यहाँ आएगा. वो भी क्या? सेलिंग प्राइस अगर ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो ही यहाँ आएगा, बराबर है क्या? ऐसा है. देन नॉन वेस्टिंग चैटल्स आ जाओ जरा. नॉन वेस्टिंग चैटल्स का जो 6000 वाला क्राइटेरिया है वही मुझे लगता है कि मे बी माइट बी अ गूगली इन एग्जाम, करेक्ट, कि अगर ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस देन 6000 है और कॉस्ट ऑफ एसेट भी लेस देन 6000 है तो पूरा का पूरा एसेट क्या है? एग्जाम्प्ट है, करेक्ट, उस पर टैक्स ही नहीं आएगा. इफ द ग्रॉस सेल प्रोसीड आर लेस देन 6000 एंड कॉस्ट ऑफ एसेट इज मोर देन 6000, यानी लॉस आएगा 100%, बिकॉज सेल प्रोसीड लेस है, कॉस्ट मोर देन 6000 है. इन दैट केस
आपने ग्रॉस सेल प्रोसीड्स को डीम करना है 6,000, करेक्ट, और माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेलिंग, करेक्ट, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कैपिटल लॉसेस ले लेना है। इधर जीएसपी विल बी 6,000, यानी आपको 6,000 से कम की जीएसपी नहीं ले सकते। बट इफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स आर मोर देन 6,000 एंड कॉस्ट ऑफ एसेट इज लेस देन 6,000, ऐसा अगर सीन है तो इन दैट केस आप नॉर्मल सीजी कैलकुलेट करो, जीएसपी जो आपका ऊपर निकला है मोर देन 6,000 माइनस 6,000 कर दो, इंटू 5/3 कर दो, वॉच एवर इज द लोअर विल बी टैक्सेबल। फिर इफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स भी 6,000 से ज्यादा, कॉस्ट ऑफ एसेट भी 6,000 से ज्यादा, देन नॉर्मल सीजी कैलकुलेशन अप्लाइज। बराबर है क्या? देख लो, इसके सारे एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवा दी, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं क्लास में या एग्जाम में। एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, आ जाओ जरा, एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, चलो चलो चलो। इफ एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो गई, नो इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव्ड, नो टेंशन, कैपिटल लॉस लो, घर जाओ, करेक्ट। बट इफ इंश्योरेंस प्रोसीड आर रिसीव्ड और आपने कोई रिप्लेसमेंट एसेट बाय नहीं की, इन दैट केस जो भी आपका आईपी रिसीव्ड है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिव्स यू चार्जेबल गेन्स और कैपिटल लॉसेस, करेक्ट। टैक्सेबल व्हेन आईपी रिसीव्ड एंड नॉट व्हेन एसेट डिस्ट्रॉयड, याद रखना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल व्हेन आईपी इज रिसीव्ड, राइट। एसेट डिस्ट्रॉय 5 साल बाद हुई, इंश्योरेंस प्रोसीड 5 साल बाद रिसीव हुए, इट विल बी टैक्स व्हेन इंश्योरेंस प्रोसीड आर रिसीव्ड। इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव्ड होने के बाद, राइट, विद इन, बट जब आपको रिप्लेसमेंट एसेट बाय करना होता है दैट शुड बी बॉट विद इन 12 मंथ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 12 मंथ विद इन डिस्ट्रक्शन में कोई रिप्लेसमेंट एसेट बाय की, राइट, और इन दैट केस आपने री इन्वेस्टमेंट किया, जो आईपी रिसीव 10,000, आपने री इन्वेस्टमेंट किया 15,000, नया एसेट ले लिया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, राइट। देखो जरा, इन दैट केस रिवाइज बेस कॉस्ट आएगा क्या? यस। तो व्हाट विल हैपन, द होल सीजी नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट। हैव अ लुक, सीडी इधर नीचे नहीं, इधर है ना, ये रहा देखो, डी है क्या, इधर सी रहेगा, इधर सी। आपने 20,000 का क्या हो गया था, आईपी रिसीव था, राइट, और आपने डिस्ट्रक्शन पे पूरा 20,000 का एसेट बाय कर दिया, तो योर बेस एसेट पे जो सीजी और सीएल है वो नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट में चला जाएगा, सीजी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और वही सीजी जो एग्जाम्प्ट है वो इधर के रिवाइज बेस कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, करेक्ट। एंड सॉरी, न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा, और नया रिवाइज बेस कॉस्ट, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द री इन्वेस्टमेंट एसेट। और जब आप सीजी कैलकुलेट करोगे अंदर रिप्लेसमेंट एसेट या री इन्वेस्टमेंट एसेट, वो ऐसे होगी, बराबर है क्या? देखो, उसके बाद अगर क्या है, री इन्वेस्टमेंट कम है बट मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट है, इन दैट केस डी पार्ट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है, तो जितना री इन्वेस्टमेंट नहीं है उतना सीजी टैक्सेबल, सो वॉट एवर सीजी आप टैक्सेबल निकालो, जितना री इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है उतना टैक्सेबल सीजी हो जाएगा, रिमेनिंग नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट में हो जाएगा, और नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट जो होगा वो सीजी में से यहाँ माइनस हो जाएगा, करेक्ट। दैट इज हाउ इट विल बी। देन री इन्वेस्टमेंट इज लेस देन आईपी रिसीव्ड, करेक्ट, कम है, एंड लेस देन ओजी कॉस्ट है, तो पूरा सीजी टैक्सेबल हो जाएगा। अभी रिवाइज बेस कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रिप्लेसमेंट एसेट, व्हेनेवर द रिप्लेसमेंट एसेट इज सोल्ड द रिवाइज बेस कॉस्ट विल बी यूज्ड एज cost of acquisition. If there is a capital loss in the original asset that is destroyed, that is IP received is less than original cost of acquisition, you should not replace the asset as you will not be able to claim capital losses, क्योंकि अगर आप रिप्लेस करेंगे तो नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट लग जाएगा, बराबर है क्या? नो गेन नो लॉस ट्रीटमेंट लग गया तो लफड़ा हो जाएगा। इफ नो रिप्लेसमेंट एसेट इज परचेज विद इन 12 मंथ्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, डायरेक्टली कैलकुलेट सीजी और सीएल ऑन ओरिजिनल एसेट। इफ particularly IP is invested in replacement asset within 12 months, then follow IP greater than new cost of acquisition from the original table, D और F वाला क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, एसेट पार्शियली डिस्ट्रॉयड, अगर मेरी कोई एसेट है, टेबल है, 4 legs 1 leg इंजर्ड, करेक्ट, ऑफ द टेबल है, अपना नहीं, राइट, 1 leg इंजर्ड एंड नो इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव्ड, कोई सीजी इंप्लीकेशन नहीं, एक पाव निकाल के साइड में रख दो, करेक्ट, 3 पाव वाला टेबल बेच देंगे, बेचना हो तो, राइट। वो जब होगा तब देखेंगे, उसमें लॉस आएगा तो लॉस कंसिडर कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस प्रोसीड रिसीव्ड, एंड आपने बोला 3 पाव का ही टेबल रखेंगे, अब उसको कुछ जोड़ना नहीं है, कोई रिस्टोरेशन काम करना नहीं है, इन दैट केस जो आईपी रिसीव होगा इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे आप क्या है बोलो, एक पाव आपने बेच दिया ऐसा कंसिडर करके पार्ट डिस्पोजल बोल के इसको कंसिडर कर लेंगे, बराबर है क्या? तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू आईपी रिसीव डिवाइड बाय आईपी रिसीव प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज एसेट गिव्स यू सीजी और सीएल। वो एक पाव का जो वैल्यू है, राइट, वो आईपी रिसीव होगा, एंड यू हैव टू टेक, इफ
थ्री लेगेड टेबल इज सोल्ड, तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज एसेट क्या होगा। बट अगर आपने वॉट एवर आईपी रिसीव यू यूज इट फॉर रिस्टोरेशन वर्क एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट इज हायर देन द आईपी, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में खाली चेंज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आईपी रिसीव्ड माइनस होगा एंड कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऐड होगा, उससे आपका न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिस्टोर्ड एसेट या रिवाइज बेस कॉस्ट निकलेगा। फिर वही अगर पार्ट प्रोसीड्स यूटिलाइज है फॉर रिस्टोरेशन, क्या है, लेस देन आईपी, इन दैट केस क्या है, ये वाला एक क्वेश्चन था ना इधर, जनरली ऐसा होता नहीं बट पार्ट प्रोसीड्स ही यूज हुआ, राइट। तो आई थिंक एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला, इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर रिसीव्ड 12,000, हाँ, रिस्टोरेशन डन 8,000, इन दैट केस रिस्टोरेशन 8,000 और उतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से 3,000 माइनस हो जाएगा। फिर इनटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, राइट, तो इस केस में क्या होगा, आप जब कॉपीराइट या ट्रेडमार्क्स बेच रहे हो, राइट, तो इन दैट केस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इनटू रिमेनिंग इयर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट, वो आपने मल्टीप्लाई करना है और उतना ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के मिल जाएगा, राइट, व्हेन यू आर सेलिंग व्हाट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। शेयर्स, फिर शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल सीजी, करेक्ट, इसमें तो बहुत ही इजी है, शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल जो है इसमें क्या है, देख लो जरा, कोटेड शेयर या लिस्टेड शेयर अगर आपने गिफ्ट किया किसी को, तो इन दैट केस सेलिंग या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, गिफ्ट किया तो सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द लोएस्ट प्राइस प्लस हाईएस्ट प्राइस, या एवरेज प्राइस निकालना है, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट डे डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। और लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्या है, सीजी नहीं आएगा, क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे सीजी नहीं आएगा, एंड शेयर्स हेल्ड इन इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, राइट, उस पर भी सीजी नहीं आएगा, दे आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर प्लस गिफ्टेड, ये आप देख सकते हो, एक बार मैंने करा है, राइट, तो उसमें 3-4 रेट देंगे तो लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाय 2 करके काम हो जाएगा। ये आईएसटी प्लस सीजीटी का इम्प्लीकेशन मैंने उधर बता दिया है कि 60% पे मार्केट वैल्यू पे होगा, राइट। जब भी आप कोई शेयर सेल करेंगे, करेक्ट, सेल प्रोसीड जाएगा ग्रॉस सेल प्रोसीड माइनस इंसिडेंटल कॉस्ट, एंड व्हेन यू हैव टू टेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज यू हैव टेकन द शेयर्स ओवर लास्ट 5 years, यू आर टेकिंग 100 200 100 200 शेयर ऐसा ले रहे थे, करेक्ट। तो वेन एवर यू आर सेलिंग द शेयर्स, सम पार्ट ऑफ द शेयर्स, देन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए शेयर्स अक्वायर्ड ऑन द सेम डे, सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए शेयर्स अक्वायर्ड विद इन द नेक्स्ट 30 days आफ्टर डिस्पोजल, एंड थर्ड प्रेफरेंस वुड बी द शेयर पूल। शेयर पूल में क्या करना है, आपको टोटल वैल्यू ऑफ द पूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी वेटेड एवरेज, राइट, सारे पूल के शेयर यानी सेल के पहले के सारे शेयर्स विल गो इनटू अ पूल, करेक्ट, एंड वो पूल में जितने शेयर्स है या वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपको कितने शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम दैट पूल चाहिए, उतना माइनस करके आपने कामकाज करना है। हाँ, अगर बोनस शेयर इशू होंगे तो आपको खाली बोनस शेयर में क्या करना है, अमाउंट ऑफ व्हाट, शेयर्स बढ़ाना है, राइट, अमाउंट तो यानी सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना है, अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ शेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं, राइट शेयर तो नॉर्मल परचेस ऑफ शेयर है, कोई टेंशन है ही नहीं, यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर एंड वैल्यू इन द शेयर पूल, करेक्ट। हाँ, बट अगर टेक ओवर या रीऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, ओल्ड कंपनी शेयर यू हैव टू गिव एंड यू विल गेट न्यू कंपनी में इधर शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर को देके खाली इक्विटी शेयर मिला तो ओल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द सेम, बट न्यू या ओल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही न्यू शेयर्स के लिए यूज होगी बिकॉज इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर मिला, बट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर या कैश तीनों मिला तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू और कैश का मार्केट वैल्यू, बराबर है क्या, देख लो जरा, ये हो गया। फिर सीजी रिलीफ फॉर इंडिविजुअल आ जाओ जरा, राइट, रिलीफ सबसे पहले प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ, व्हाट इज प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ, आपका कोई मेन रेसिडेंस है और आप फुल टाइम उस मेन रेसिडेंस में रह रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, क्या है, सीजी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपने बाय किया, ओन किया, जितने टाइम ओन किया यू स्टेड इन दैट प्रॉपर्टी ओनली, मेन रेसिडेंस से आपने सेल किया, पूरा का पूरा सीजी एग्जेम्प्ट एज प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ, बट इफ यू डोंट स्टे फुल टाइम इन द प्रॉपर्टी देन प्राइवेट रेसिडेंस रिलीफ यानी क्या होगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीजी आ गया 100,000, अगर आप फुल टाइम रहते हो फुल 100,000 सीजी विल बी एग्जेम्प्ट, बट अगर आप नहीं रहे तो पीआरआर बोल के पूरा नहीं मिलेगा, जो भी गेन होगा इनटू टोटल पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप, उसमें टोटल पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन में एक्चुअल प्लस डीम दोनों होगा, राइट, एक्चुअल तो आप एक्चुअल जितना रहे वो, डीम में ऐसा है कि लास्ट 9 महीने तो डीम किया जाएगा दैट यू हैव स्टेड इन द
property even if you have not stayed in the property. Second, अगर आप कहीं abroad गए तो that stay, but you have to leave the house and come back to the house after being employed in abroad. Correct? You leave the house भी कैसा, आप यहाँ से घर से निकले, दोस्त के यहाँ गए, रिलेटिव के यहाँ गए, अब्रॉड काम के लिए गए, वापस आए, दोस्त के यहाँ गए, रिलेटिव के यहाँ गए, वापस घर गए. You have to leave the house and eternally come back to the house. It could be directly, indirectly, right? Then that period of what, क्या है, abroad employment will be fully deemed occupation, right? Then if individual goes to say some other city in the UK for employment purposes, then up to 4 years he will be deemed as what, occupation. फुल लाइफ टाइम में 4 साल तक अलाउड है. यानी वो गया 5 साल बाद वापस आया तो आप खाली 4 साल का व्हाट, 4 years यू कैन टेक व्हाट, टेल मी, as deemed occupation. And last but not the least, if any other reason other than these two reasons, if he goes up to 3 years once in a lifetime, will be allowed. After using the PRR, whatever is CG left will be taxed at 18 or 24% depending on where the income is falling in the computation. बराबर है क्या? PRR का एग्जाम्पल देख सकते हो. PRR प्लस बिजनेस यूज पे आ जाओ. राइट, PRR प्लस बिजनेस यूज क्या है? अगर आपको एक प्रॉपर्टी है, यू हैव 6 रूम्स, यू यूज 1 room एज ऑफिस फ्रॉम द स्टार्ट and baki 5 for residential, then whenever you get the CG of that property, 1/5 of that, right, will not be allowed for PRR. 5/6 will be allowed for PRR. But if for part of a period of ownership, yani first 5 years or 10 years you own the property for 20 years, out of that 10 years you use full property for residential purpose, after that एक रूम आपने क्या कर दिया, ऑफिस बोल के कन्वर्ट किया लास्ट 10 years में. करेक्ट? तो आपको प्रोपोर्शनल कामकाज करना पड़ेगा और लास्ट के 9 महीने कंसिडर करके proportionally, right? So for the last 10 years 9 महीने निकल गए, in the 9.5 years, right, into 1.6 will be not occupied or into 5/6 will be occupied. How many ever months into 1/6 or 5/6? 5/6 occupied, 1/6 will be not occupied or last 9 months deemed occupied. Correct? ऐसा करके कामकाज करना पड़ेगा. फिर लेटिंग रिलीफ आ जाओ. लेटिंग रिलीफ इज व्हाट, only part of the property is letted out, correct, and the tenant does not have access to other rooms in the house and does not share meals. If both the conditions are fulfilled तो आपको letting relief मिलेगा. Over and above the PRR letting relief मिलेगा. तो या तो it could be PR relief given 40,000 और part attributable to the letting relief. तो आपको letting relief कितना part let किया अपने हाउस का, right, और proportionate period कितना है out of the total period, right, वो कैलकुलेट करना है. उसका PRR या उसका लेटिंग रिलीफ का जो CG एट्रीब्यूटेबल है वो करना है, या PR रिलीफ गिवन या 40,000 विच एवर इज लोअर. बराबर है क्या? देखो जरा, BADR, राइट, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, उसके अंदर 2 पार्ट है, राइट. BADR इज नॉट अ रिलीफ विच रिड्यूसेस योर CG, नो, इट ओनली गिव्स यू अ लोअर टैक्स रेट, राइट. एंड देन देयर इज अ लाइफ टाइम लिमिट. लाइफ टाइम लिमिट क्या है? BADR of only 1 million allowed during the lifetime, right. जनरली BADR एंड इन्वेस्टर रिलीफ जो होगा उसके लिए काफी लॉजिक सेम है. बराबर है क्या? एक सेकंड ना. तो BADR में क्या होता है? BADR पहले क्वालिफाइंग एसेट देख लो. BADR की एसेट क्वालिफाइंग क्या है? होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस. होपफुली यू हैव ओन्ड द बिजनेस फॉर 2 years. You are an individual or partner. If the whole business has ceased, correct, and you are selling all the what assets within 3 years from what, the closure, and you have owned the business minimum for 2 years, right, then in that case BADR will be available. And disposal of shares of a trading company where you have owned the shares for 2 years, an individual holds at least 5% of the shares of the company and part or full-time employee of the company for 2 years, right. अगर ये 3 assets है, right, and you have sold, right, then इसके ऊपर tax will be only 10%. कितना? Only 10%. बराबर है क्या? Right. And then
दिस 10% का रेट यू कैन क्लेम फॉर अप टू 1 million वर्थ ऑफ सीजी इन योर फुल लाइफ. अगर 1 million के ऊपर गए तो नॉर्मल 20% और 24% वॉट एवर इज द रेट विल अप्लाई. बराबर है क्या? इसका एक क्वेश्चन भी है इधर. लाइफ टाइम लिमिट का, राइट. तो उस केस में क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट विल बी टैक्स्ड एट व्हाट? 20%, राइट. फिर बीएडीआर, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ बीएडीआर. हाँ, बीएडीआर का कैलकुलेशन करते वक्त, राइट, आपको कॉलम जब सीजी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यू हैव टू डू नॉन बीएडीआर एंड बीएडीआर. नॉन बीएडीआर में रेसिडेंशियल अलग, अदर एसेट्स अलग, और बीएडीआर अलग. बीएडीआर से ज्यादा बेटर है कि आप एईए और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, करेक्ट, आप कहाँ यूज कर सकते हैं? इन योर अदर एसेट्स में अगेंस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन अदर एसेट्स, और फिर बीएडीआर के अगेंस्ट यूज करना है तो यूज कर सकते हो. बराबर है क्या? तो व्हेन बीएडीआर क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग इनकम कम टुगेदर, ऑलवेज टैक्स क्वालिफाइंग इनकम फर्स्ट एंड देन नॉन क्वालिफाइंग. टैक्सिंग के वक्त क्वालिफाइंग इनकम पहले, नॉन क्वालिफाइंग बाद में. बट व्हेन यू आर यूजिंग एईए, फर्स्ट नॉन क्वालिफाइंग बीएडीआर के अगेंस्ट, फिर क्वालिफाइंग बीएडीआर के अगेंस्ट. और इन्वेस्टमेंट एसेट्स अगर बीएडीआर में आए हैं बैलेंस शीट में इन द बिजनेस यू आर गिफ्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स विल नॉट बी अलाउड एज अ व्हाट? बीएडीआर रिलीफ वाला. तो बीएडीआर में दो पार्ट हो जाएंगे, राइट. इन्वेस्टमेंट वाला अलग नॉन बीएडीआर में जाएगा और बीएडीआर वाला बाकी सब आ जाएगा. बीएडीआर के क्वालिफाइंग लॉसेस होंगे वो नेट ऑफ हो सकते हैं अगेंस्ट बीएडीआर गेन्स. करेक्ट. हैव अ लुक. ये एक बार आ सकता है, मेरे को बहुत लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इस पे बीएडीआर नहीं मिलेगा तो वो नॉन बीएडीआर बोल के अलग जाएगा, राइट. ऐसा है, ऐसे दो तीन क्वेश्चन है बुक में, राइट. ये वाला जो है ना, इसमें फैक्ट्री गुडविल एक, जिधर इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट वो रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट नॉन बीएडीआर में जाएगा और बाकी का सारा बीएडीआर में जाएगा, ठीक है. फिर इन्वेस्टर रिलीफ अनकोटेड शेयर्स, अगर आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, सीजी एट 10%, लाइफ टाइम लिमिट 10 million है इसमें, राइट. तो अनकोटेड शेयर्स सब्सक्राइब फॉर शेयर्स आफ्टर 17 मार्च 2016, होल्ड फॉर एटलीस्ट, हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3 years एंड नॉट एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, करेक्ट. इन्वेस्टर रिलीफ अवेलेबल है. बहुत ही कम क्या है ये क्वेश्चन देखा गया है, बट आया तो फ्री मार्क्स है, करेक्ट. मिनिमम 3 years याद रखना, सब्सक्राइब आफ्टर 17 मार्च एंड नॉट एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. पहले तो सब्सक्राइब वर्ड जिधर भी दिखेगा ना तो इन्वेस्टर रिलीफ आएगा, दैट इज द टर्म और इजी वे टू रिमेंबर इट, करेक्ट. फिर रोल ओवर रिलीफ, आपकी कोई गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स प्लांट एंड मशीनरी है, यू सेल इट एंड यू बाय अ रिप्लेसमेंट एसेट. इन दैट केस द सीजी दैट यू हैव एंड रिप्लेसमेंट एसेट ऑब्वियसली फुल री इन्वेस्टमेंट डन, तो फिर रिप्लेसमेंट एसेट में जो भी सीजी होगा वो नो गेन नो लॉस करके क्या होगा, न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा एंड यू विल गेट अ रिप्लेसमेंट, या क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होगा या रिवाइज बेस कॉस्ट मिल जाएगा. रिप्लेसमेंट एसेट 12 months बिफोर एंड 36 months आफ्टर सेल ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट. बोथ एसेट क्वालिफाइंग मेन एंड रिप्लेसमेंट दोनों बिजनेस यूज वाली एसेट होनी चाहिए. गेन कैन बी रोल्ड ओवर फॉर नंबर ऑफ टाइम्स टिल द एसेट रिप्लेसमेंट हैपेंस, करेक्ट. रोल ओवर रिलीफ, राइट, अगर सेलिंग प्राइस, राइट, सेलिंग प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू री इन्वेस्टमेंट प्राइस. बिजनेस यूज एडजस्टमेंट, एक मिनट रुको, पहले बिजनेस यूज एडजस्टमेंट करके फायदा नहीं, 80 100 ये भी नहीं, अरे रोल ओवर रिलीफ, हाँ, दोनों 100% बिजनेस यूज है, फुल री इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट. तो ये जो सीजी है वो पूरा का पूरा रोल ओवर हो जाएगा एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट, द न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड देयर विल बी अ रिवाइज बेस कॉस्ट ऑफ 100,000 व्हेन दे सेल इट, 100,000 विल बी द कॉस्ट. अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और अगर री इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कम है, 100% बिजनेस यूज है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, the amount of reinvestment will be of CG taxable and 80,000 will be rolled over and revised base cost will be received. Selling price क्या है, less than, selling price is more and reissue proceeds is less than original cost of acquisition. In that case क्या होगा, cost of acquisition कुछ भी आपको reinvestment बहुत कम है, in that case पूरा का पूरा CG taxable हो जाएगा, right. देन हाँ, लेस देन 100% बिजनेस यूज है, आपकी जो एसेट सेल हुई वो 100% बिजनेस यूज की और आपने जो एसेट बाय की वो 70% बिजनेस यूज की है, तो आपका जो ये रोल ओवर रिलीफ है, राइट,
सबसे पहले क्या होगा, 60,000 तो आपका सीजी हो जाएगा, बिकॉज 200,000 में से 140,000 ही बिजनेस के लिए क्या हो गई, री इन्वेस्ट हो गई। 60,000 तो री इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। और जो 40,000 रोल और रिलीफ बोल के मिलेगा, वो ये 140,000 के अगेंस्ट डिडक्शन बोल के मिल जाएगा। देन देर इज 100% बिजनेस यूज एसेट सोल्ड और न्यू 100% बिजनेस यूज एसेट बॉट, करेक्ट, दोनों लैंड एंड बिल्डिंग है। तो इन दैट केस 80% ही बिजनेस यूज है, तो आपको 80% ही रोल ओवर रिलीफ बोल के मिलेगा, और 20% क्या हो जाएगा, सीजी बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। ये 80%, राइट, या आगे जो आप नया एसेट बाय करोगे उसमें से 80,000 माइनस हो जाएगा, बराबर है क्या, देख लो। फिर रोल ओवर रिलीफ के बाद एक फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग। इफ यू सेल अ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इफ यू बाय अ फिक्स प्लांट एंड मशीनरी, राइट, तो आपका अगेन रोल ओवर नहीं होगा, इट विल बी फ्रीज अप टू द टाइम अर्लियर ऑफ द थ्री, अर्लीस्ट ऑफ द थ्री। या तो आपने सेल कर दिया उस प्लांट एंड मशीनरी का, या वो प्लांट एंड मशीनरी इज नो लॉन्गर यूज फॉर बिजनेस, और 10 years हैव पास फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट, ये टैक्स हो जाएगा, करेक्ट, राइट। बट इफ यू बाय लैंड एंड बिल्डिंग एंड यू बाय अ प्लांट एंड मशीनरी, गेन फ्रोजन हो जाएगा। उसके बाद इफ यू बाय अगेन अ लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, विद इन दैट 36 months आफ्टर, तो अगेन दैट फ्रोजन गेन कैन बी रोल्ड ओवर, ऐसा भी एक प्रोविजन है, राइट। ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, ये रहा सेलिंग प्राइस का, आप देख सकते हैं तो टेबल, ये लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड है, करेक्ट, एंड यू बाय अ न्यू व्हाट, टेल मी, ये भी आप देख सकते हो। तो पहले क्या है, मैंने तीनों चीजें अर्लीस्ट ऑफ द थ्री लिया है। फिर गिफ्ट होल्ड और रिलीफ, इफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए गिफ्ट एन एसेट टू मिस्टर बी, राइट, जनरली तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सीजी टैक्सेबल एट मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस, करेक्ट। बट इफ यू बोथ डिसाइड दैट यू वांट टू यूज अ गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ provision, then all the CG that is earned here by Mr. A will be held over and will be deducted, यानी cost to acquisition ऐसे का ऐसा Mr. B को मिल जाएगा, the whole amount will be held over and sent, right, revised base cost मिल जाएगा, correct। but in this case there is another provision, कुछ कुछ qualifying asset है, asset used in trade of the donor or donor's personal company, unquoted shares and securities of any trading company, quoted shares and securities of any ऑफ डोनर्स ट्रेडिंग कंपनी। अगर आपने पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी क्या है, यानी मोर देन 5% हेल्ड है, अनकोटेड या कोटेड शेयर्स है, तो आपको क्या होगा, बोलो, सीजी इंटू चार्जेबल एसेट, चार्जेबल एसेट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, चार्जेबल बिजनेस एसेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ चार्जेबल एसेट। चार्जेबल एसेट क्या है और बिजनेस एसेट क्या है, तो जो बिजनेस एसेट, नॉन बिजनेस एसेट, चार्जेबल एसेट एंड बिजनेस एसेट प्लस चार्जेबल एसेट, तो बिजनेस एसेट प्लस चार्जेबल एसेट लेना है डिवाइडेड बाय चार्जेबल एसेट। जो नॉन बिजनेस एसेट है, राइट, बट चार्जेबल एसेट है, और क्या है, बिजनेस प्लस चार्जेबल एसेट वाला पार्ट आपको लेना है, बराबर है क्या। एक वो टोटल रहेगा और एक चार्जेबल एसेट का टोटल रहेगा, देख लो एक बार, ठीक है। यानी रिसीवेबल बिजनेस एसेट है बट चार्जेबल एसेट नहीं है, कैश बिजनेस एसेट है, चार्जेबल एसेट नहीं है, कार्स बिजनेस एसेट है बट चार्जेबल एसेट नहीं क्योंकि एग्जाम्प्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस एसेट है, चार्जेबल एसेट भी है, तो वो बिजनेस एसेट प्लस चार्जेबल एसेट, करेक्ट। फिर शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एसेट नहीं है बिकॉज बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट क्या यूज होगी, करेक्ट, बट चार्जेबल एसेट है तो वो ओनली चार्जेबल एसेट है, तो चार्जेबल एसेट की एक टोटल निकलेगी और बिजनेस एसेट प्लस चार्जेबल एसेट की एक टोटल निकलेगी, बराबर है। तो जो भी सीजी आएगा, होल्ड ओवर रिलीफ आप ले रहे हो, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ चार्जेबल बिजनेस एसेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ चार्जेबल एसेट। अगर आपको एसेट वैसेट गिफ्ट दिए और उस कंपनी का बैलेंस शीट दे दिया आपको, इसका क्वेश्चन है होल्ड ओवर रिलीफ का, बराबर है क्या, इधर ये रहा, ये रहा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, ये हो गया गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ। फिर सीजी फॉर कंपनीज तो और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आ जाओ। कोई भी एसेट अगर कंपनी सेल करता है, इफ द एसेट इज परचेज बिफोर December 2017, तो उसको इंडेक्सेशन यानी कंप्यूटेशन कैसे होगा, सुनो। सीजी फॉर कंपनीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करेक्ट। एक जो भी आपका इंडिविजुअल का जैसा प्रोफॉर्मा है वैसा ही प्रोफॉर्मा है, राइट। इंडेक्सेशन अलाउंस छोड़ो अभी के लिए, सुनो, डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस इंसिडेंटल कॉस्ट, करेक्ट, और नेट प्रोसीड्स आ गए लेस अलाउएबल एक्सपेंडिचर। पहले आप अनइंडेक्स गेन निकालोगे, एक एसेट 100,000 में बाय की, 200,000 में बेची, तो डिफरेंस क्या है, 100,000 सीजी, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर एसेट बिफोर 2017 बाय की गई है तो इंडेक्सेशन अप टू December 2017 मिलेगी, राइट। इंडेक्सेशन विल अप्लाई ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू, उन लोग इंडेक्सेशन फैक्टर दे देंगे, राइट।
हाँ, अब 100,000 का गेन आया, फिर आपने इंडेक्सेशन निकाला, इंडेक्सेशन 40,000 है, ठीक है, अनइंडेक्स गेन में से 40,000 इंडेक्सेशन माइनस हो जाएगा और 60,000 टैक्सेबल होगा। बट अगर इंडेक्स गेन 100,000 और इंडेक्सेशन 120, तो इंडेक्सेशन कभी भी नेगेटिव में लॉस नहीं ला सकता है, राइट। अगर एसेट इज परचेज आफ्टर दिसंबर 2017 तो कुछ उसमें इंडेक्सेशन है, अनइंडेक्स गेन ओनली विल बी द चार्जेबल गेन दैट विल बी टैक्स। इधर कोई एईए नहीं है, कुछ भी एईए वही है, कुछ भी नहीं जो इंडिविजुअल को होता है, राइट। फिर मैंने आई थिंक 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, राइट। फिर कैपिटल लॉस अगर कंपनी होगा विल बी रिलीव्ड अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स, कैपिटल लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इंडेफिनिटली बट कैन नॉट बी कैरिड बैक एंड नो ये अवेलेबल टू कंपनी। फिर शेयर टैक्सेशन फॉर कंपनी, सिंपल है। शेयर टैक्सेशन में मैंने बहुत क्वेश्चन नहीं लिए, बट आप अगर चाहे तो आज 1-2 क्वेश्चन प्लीज देख लो। पहले ऐसा हो चुका है, बिफोर इट हैज हैपेंड, दैट सीजी ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी एक 10 मार्क का क्वेश्चन उठ के आया है। तो प्लीज इफ यू हैव नॉट येट व्हाट प्रैक्टिस्ड तो प्रैक्टिस करो, मैं पूरा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सीजी इंप्लीकेशन ऑन सेल ऑफ कोटेड और अनकोटेड शेयर्स, करेक्ट। सेल प्रोसीड है, पहले जीएसपी वगैरह। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले सेम डे अगर कोई परचेस किया है, करेक्ट, तो वो ले लेना, राइट, फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड प्रेफरेंस इज शेयर्स अक्वायर्ड विद इन 9 days बिफोर डिस्पोजल, और फिर उसके पहले 9 days पहले का शेयर पूल में से क्या, टेल मी, टोटल वैल्यू ऑफ पूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर सोल्ड फ्रॉम पूल आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस, प्लस इंडेक्सेशन ऑन ऑपरेटिंग इवेंट्स। अभी इंडेक्सेशन ऑन ऑपरेटिंग इवेंट्स क्या है, नॉर्मल सेल और परचेज एन ऑपरेटिंग इवेंट, बोनस इशू इज नॉट एन ऑपरेटिंग इवेंट, राइट शेयर इज एन ऑपरेटिंग इवेंट, टेक ओवर रिऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑपरेटिंग इवेंट। तो आप ऑपरेटिंग इवेंट पे करते क्या हो, आ जाओ जरा। ऑपरेटिंग इवेंट पे अगर आपको देखना है, मैंने इधर बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया हुआ है। एट एवरी, देखो आपने एक दिसंबर 500 शेयर्स परचेस किए, ओरिजिनल कॉस्ट 15,000, राइट। फिर आपने इसके बाद दिसंबर 2015 को एक शेयर परचेस किया, तो आपने क्या करने का, ये 500 शेयर्स का जो 15,000 है उसको 14 से 15 कैरी करके लाने का। अलाउड ओनली दिसंबर 2017 तक है, 14 से 15 एक ऑपरेटिंग इवेंट है, 15 पे 15,000 इंटू 0.816 जो भी ऑपरेटिंग इवेंट होगा फ्रॉम दिसंबर 2014 टू दिसंबर 2015 का इंडेक्सेशन अलाउंस है, ये 15,000 पे लगाने का और 1224 लगा के आगे बढ़ने का, बराबर है। फिर नए शेयर आपने बाय किए 800, तो अभी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर विद इंडेक्सेशन अप टू दिसंबर 2015 क्या है, 15,000 पहले, 15,000 फर्स्ट, 21,000 आफ्टर दैट, 36,000 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स, करेक्ट। एंड टोटल कितना है 15,000 ये और 1224 का इंडेक्सेशन। फिर अगला दिसंबर 2017 तक इंडेक्सेशन है, तो पूरा 36,000 पे 0.2516, करेक्ट, यानी आपको 9057 का इंडेक्सेशन मिलेगा। यानी पुराना 9057, पुराना 1224 प्लस 9057 क्या होगा, इंडेक्सेशन अप टू क्या होगा, बोलो बोलो, यहाँ तक ऐसे इंडेक्सेशन कैलकुलेट होगा। फिर जब आप डिडक्ट करेंगे तो पहले अनइंडेक्स्ड वाली वैल्यू करना और फिर इंडेक्सेशन का पार्ट करना, बोथ एट व्हाट, टेल मी। बाकी सब कुछ तो आई थिंक सेम ही है एज व्हाट इट वाज बिफोर, ठीक है। यूके टैक्स एडमिन में चलो फटाफट, राइट। इंडिविजुअल के लिए फाइलिंग रिटर्न की डेट इज 31st अक्टूबर आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर 24-25 के लिए 31/10/2025, 31st जैन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है तो 31st जैन आफ्टर टैक्स ईयर 24-25 दैट इज 31/01/2026। फॉर्म P60 का डेट 31st मई, P45 का डेट विद वन एम्प्लॉय लीव्स, राइट, एंड P11D का क्या है 6 जुलाई 2025। एक बार डेट रीड कर लो। टैक्स पेमेंट डेट्स फॉर इंडिविजुअल आई थिंक हमने डिस्कस किया। टैक्स पेमेंट डेट क्या है, आ जाओ। पेमेंट ऑन अकाउंट होता है, पेमेंट ऑन अकाउंट क्या बोलता है, आ जाओ, राइट। पीएवाई सिस्टम है, जो भी आपका पेमेंट ऑन अकाउंट है, राइट, वो 3 तरीके से पे होता है, 2 पीओए और एक बैलेंस पेमेंट। 2 पीओए कब होता है, फर्स्ट होता है 31st जैन 2025, सेकंड होता है 31st जुलाई 2025 फॉर टैक्स 24-25, करेक्ट। और उस पर इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इनकम टैक्स आफ्टर पीएवाई डिडक्शन प्लस क्लास 4 एनआईसी जो भी आपके लास्ट ईयर में पे हुआ है उसका 50% फर्स्ट पीओए में पे करने का, 50% सेकंड पीओए में पे करने का। और व्हाट इफ एनी आफ्टर यू कैलकुलेट द एक्चुअल लायबिलिटी दैट शुड बी व्हाट, टेल मी, क्लास 4 एनआईसी वो होगा पेड इन द बैलेंस अमाउंट इफ पेएबल, पे इट ऑन द डेट ऑफ व्हाट, बैलेंस पेमेंट कब होता है, बिफोर द टैक्स पेमेंट, फाइनल सॉरी तुम्हारा रिटर्न पेमेंट, रिटर्न के पहले 31st जैन के पहले पे करना है। आप कैलकुलेशन सारे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो थे कैलकुलेशन वाले सारे कर दिए। लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% का रेट है, और अगर
इफ यू पे एक्स्ट्रा टैक्स तो आपको मिलेगा 4.25%, राइट, फ्रॉम द डेट इट इज टू बी पेबल अप टू द डेट यू पे इट, करेक्ट। पेनल्टी फॉर इंडिविजुअल, अब पेनल्टी एक बार पढ़ लो रे, पेनल्टी में ना कुछ ये नहीं है, रिकॉर्ड रिटेंशन अगर इंडिविजुअल का है तो 5 साल तक करना है अगर बिजनेस है, और 12 मंथ तक करना है अगर क्या है अदर देन बिजनेस है। कंपनी के लिए लेटर ऑफ 6 years आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस चेक, या तो डेट व्हेन इट इज इम्पॉसिबल, आप याद रखो 6 years इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर सीरियस केस हुआ नॉट कीपिंग रिकॉर्ड का तो 3,000 की पेनल्टी, अगर सीरियस केस नहीं है तो नो पेनल्टी। कंप्लायंस चेक यानी आपके इसमें कोई they want to ask you some questions, they will bring you forward for some questioning, correct, right, and you can talk to first with the compliance check and talk with the HMRC। अगर आपको ठीक लगता है ओके है सब कुछ, और वो लोग लाइबिलिटी को कॉश कर देते वगैरह, या आपको एक्सेप्टेड है लाइबिलिटी और केस क्लोज हो जाता है, तो आपको केस क्लोज करके आपको टैक्स पे करना है या टैक्स नहीं पे करना है वो डिसाइड करना है। बट अगर आप हैप्पी नहीं है, राइट, तो आप एक इंटरनल रिव्यू ऑफ द HMRC मांग सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं टैक्स ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। अगर छोटा केस है तो फर्स्ट टायर ट्राइब्यूनल, इफ इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस इट विल गो टू द अपर टायर ट्राइब्यूनल, इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इतना ही याद करने की जरूरत है। अगर आपने इनकरेक्ट रिटर्न फाइल किया, राइट, जेन्युइन मिस्टेक है तो नो पेनल्टी, बट अगर आपने केयरलेस या रीजनेबल केयर नहीं लिया तो 30% पेनल्टी लग सकती है, राइट। इनकरेक्ट मतलब कुछ लेना चाहिए था टैक्स और कुछ आपने भरा नहीं टैक्स, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम किया तो डेलिबरेटली आपने रिटर्न क्या किया, इनकरेक्ट फाइल किया, राइट, तो इस केस में 70% पेनल्टी, और कंसीलमेंट के हिसाब से किया और उन्होंने प्रूव किया तो 100% बॉस, करेक्ट। फाइलिंग में अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया तो 100 पाउंड फिक्स पेनल्टी, 3 मंथ लेट किया तो 10 पाउंड पर डे, मैक्सिमम 9 days इन एडिशन टू दैट 100 पाउंड, 6 months लेट किया तो 5% ऑफ टैक्स ड्यू प्लस द अबव पेनल्टीज, यानी 100 प्लस 10 days 900 पाउंड, यानी 1,000 पाउंड प्लस 5% of the 6 months late, correct, more than 12 months after due date where withholding information was not deliberate, आपने लेट किया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करनी थी, नॉट डेलिबरेट तो 5% और, राइट, डेलिबरेट 70%, डेलिबरेट विद कंसीलमेंट 100%। एक बार रीड मारो रे, मेरे को नहीं लगता इस वाला पार्ट, हाँ ये जो है लार्ज कंपनी वगैरह वो ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, अकाउंटिंग पीरियड अगर क्या है, देखो, सबमिट अ सेल्फ असेस विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ अकाउंट, जो भी उसका पीरियड ऑफ अकाउंट होगा वहां से 12 मंथ्स क्या करना बाद उसने एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न फाइल करना एज अ कंपनी, करेक्ट। फिर टैक्स पेमेंट ड्यू डेट फॉर कंपनीज ऐसा है कि स्मॉल कंपनी होगी तो 9 मंथ एंड 1 डे आफ्टर एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड अगर 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 24 है तो प्लस 9 मंथ यानी सितंबर नहीं 1 अक्टूबर विल बी योर पेमेंट डेट। बट इफ यू आर अ लार्ज कंपनी देन 14 डेज ऑफ 7th ऑफ द 7th 10th 13th एंड 16th फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड अगर 1/1/24 से लेकर 31/12/24 है तो 14 जुलाई 24, 14 अक्टूबर, 14 जनवरी 25 एंड 14 अप्रैल 25 विल बी योर डेट ऑफ पेमेंट। और सबको IXBRL फॉर्मेट के अंदर यानी इनलाइन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल करना है। फॉर्मेट दिया रहता है, फॉर्मेट में फ्लैगिंग सिस्टम रहता है, वो फ्लैगिंग सिस्टम मेजर अमाउंट्स को फ्लैग करता है। कंपनी का रिकॉर्ड 6 years, ठीक है। फिर लार्ज कंपनी क्या होता है, इधर खाली एक हल्का चेंज करोगे क्या लार्ज कंपनी में, ये आपको ना थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, लार्ज कंपनी कब हो, जब आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज मोर देन 1.5 मिलियन, राइट। एंड पहले आपको देखना है अगर आपका इस साल में 1.5 मिलियन के ऊपर अगर ऑगमेंटेड प्रॉफिट है तो आपको देखना है लास्ट ईयर में आप लार्ज कंपनी थे क्या नहीं। अगर आप लास्ट ईयर में लार्ज कंपनी थे देन यूर अ लार्ज कंपनी दिस ईयर एज वेल, नो टेंशन। बट इफ यू आर नॉट अ लार्ज कंपनी लास्ट ईयर, करेक्ट, देन इन दैट केस क्या होगा, इस साल आप लार्ज कंपनी नहीं होंगे। बट आपका जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन है उसमें थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें टीटीपी प्लस डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अनएसोसिएटेड कंपनीज एंड 1.5 मिलियन थ्रेशोल्ड, 1.5 मिलियन थ्रेशोल्ड का जो ये इंटू n/12 इंटू 1/m है, बराबर है क्या। तो 1/m यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, आप और 4 कंपनीज है तो 5 कंपनी हो जाएगी, बराबर है क्या, वैसा है। देखो जरा, ओके है क्या। देन पेनल्टी एंड इंटरेस्ट एक बार पढ़ लो, अदर पेनल्टीज इंटरेस्ट 7.75 4.25 अपन ने किया हुआ है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, ये आप एक बार देख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आपका पोर्शन डन एंड डन 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 खत्म हो चुका है। अब आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर प्लानिंग के बारे में एंड टाइम मैनेजमेंट।
ये लिख लो किधर तो, अभी 2 तारीख को काम आएगा आपको। द यूके टैक्स पेपर हैज 3 पार्ट्स। क्या है 3 पार्ट्स भाई? I have seen students complaining about time management a lot, right? एक मिनट रुको।